First of all, I would like to introduce you with Dr. Yogesh Verma. He is currently working as skill assistant professor at Sri Vishwakarma Skill University. He is having more than 14 years of experience of working with industries and educational institutes. He is a certified master and has trained more than 5,000 trainers and assessors across the country. I welcome you, sir, on behalf of Guru Jambeshwar University of Science and Technology, Hisar. It's our privilege to have you with us. Uh, I would like to throw some light on his professional experience also. He has also worked as assistant professor and program coordinator for online MBA program at Directorate of Distance Education, Guru Jambeshwar University of Science and Technology, Hisar. He has organized online TOT, training of trainer and training of assessor program for different government organizations like MEPSC, RSDC, SPEFL, SC, ESSCI, FXC, mainly for platform skills. He has conducted more than 70 batches of TOT or TOA for 6 different SSCs. He has been working as master trainer for different government and private organizations. He has conducted sessions on platform skills training along with soft skills, entrepreneurship and employability skills training. He has trained more than 5,000 teachers, trainers, assessors on different skills like online tools for teaching, facilitation skills, platform skills, etc. He has some additional qualification also, like he is net qualified in tourism administration and management. He is net qualified in commerce. He is net qualified in management. He is net JRF qualified in commerce in June 2015, and he is JRF qualified in management in December 2012. Now I would like to request Dr. Yogesh to interact with the students and guide them about the career opportunities in MBA, which is our topic for this webinar. So, sir, please, you can start now. Good morning, everyone. Thank you, Dr. Anjali. So the request which I wanted to do is already done in the chat box. I request all of you to on your cameras, if possible. Let us make this next 1 hour interactive. Let us try to learn something from this 1 hour interaction. And I'm not going to talk one way. I will need the support of all the students so that we can have some fruitful discussion. So first of all, I would like to thank Pratap sir, who gave me this opportunity to interact with you student. Thank you all the coordinator. Thank you, Anjali ma'am. And now let us directly come to the topic. The first thing that I want to know from you is that I guess all of you are comfortable in English and Hindi both, I guess. Yeah. So we will try to be bilingual, but when I will proceed in my presentation, I will give a light on the importance of communication in English as well. Okay, so first of all, one thing with that I want to know from you is that what is the full form of KFP? Have you heard this term? I'm writing in the chat box. KFP. KFP. The request that was done by, I guess, Ved Prakash ji as well as by me is followed by only 3 students, Abhishek, Nipun and Manjeet, and Bharat as well. Again, a request to on your cameras. I make sure that I will not bore you, okay? And I make sure that we all will learn something new. So request all the participants. Please turn on your cameras, as sir is saying. You can turn on your cameras, please. Yeah, thank you, thank you. So KFP stands for, it's in Punjabi, ki farak painda. In Hindi, kya farak padta hai? And in English, how does it matter? Why I said this here? आपका timing क्या थे? What was the timing for our program? 11 o'clock. I and Dr. Anjali and others were waiting for all of you, and many of you joined after that time. Why? Because we think that क्या फर्क पड़ता है अगर हम 5 मिनट लेट हो जाते हैं? Generally, this is the mindset which we have. That क्या फर्क पड़ेगा 3 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट से? But let me tell you, in your professional life, it matters. So try to respect time. If you will not respect time, time is not going to respect you. With the experience that I worked in corporates, I worked in government organizations, I had on my startup as well, I can very clearly say to you that if you have this KFP attitude in your life, you will not be able to succeed. Getting a job is not the final thing. Job aap sabko mil jayega. But if you want to grow, if you want to have your footprints, then you have to respect time. So let us try not to have KFP. कि क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है
Next time, chance will be there to interact with you. I request everyone to be on time, please, because we all have our own priorities. I was also, supposed to go from Gurgaon to Chandigarh today morning, but I shifted that program because I wanted to interact with you. So try to prioritize the things in your life. Ma'am, request you to kindly allow me to start sharing my screen. Yes, sir, definitely. Yeah. So next 1 hour, maybe 90 minutes, we will be talking on various things. I will take you to the journey of various things which you can do after the MBA, or what are the issues that you people face, that why we don't get the job. So again, I request, because now the crowd is 35, 36 students, you can use the chat box to give the answers when I ask you questions, or at the same time, you can unmute also. Okay, so I guess the permission is given to me. No, okay, it is being done. आप में से कुछ लोग मुझसे पढ़े भी हैं क्या? कुछ फेसेस मुझे, क्योंकि फेसेस ऑन नहीं है तो आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज. आई गेस नो, आप लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ. Host has disabled participant screen sharing. I guess you have to make me co-host something. चलिए, जब तक मुझे राइट मिलते हैं. Students, please make sir as co-host. But again, host disabled participant screen sharing. This is the message that I am getting, ma'am. Let me see. Muskan, can you please make sir as co-host? Yes, sir. Muskan is there. Yes, sir. Now you are the co-host. Yes, now I can share my screen. Thank you, ma'am. So I hope the PPT, the screen is visible to everyone. Yes? Yes. Okay. So my introduction is already done, and we have wasted about 10 minutes already. So I'm not going to talk about me, but if time will allow, then in the last, I will share a story with you that how I reached to Skill Vishwakarma University, and what is this university all about. We will talk in a later stage, but let us directly come to a scenario. In UP, in Uttar Pradesh, in 2015, there were vacancies for peon position. Okay. उत्तर प्रदेश में 2015 में पीएन के लिए पोस्ट निकली, वैकेंसीज थी 368. क्वालिफिकेशन थी जी 5th पास. अगर आपने 5th पास किया है, यू कैन अप्लाई टू बिकम अ पियोन. 2015 की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है जी. हम मिलके कुछ गैस करते हैं. नाउ यू विल आंसर इन द चैट बॉक्स. ओके, आपको क्या लगता है 368 वैकेंसीज के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया? कुछ रफ आइडिया. यू कैन अनम्यूट आल्सो, यू कैन आंसर इन द चैट बॉक्स. Any idea? Random idea, rough idea. Let me see the chat box. जितने लोग chat box में लिख रहे हैं, it means they are actively listening. So Namarta is saying in lakhs, 1 lakh, 1 lakh, 10 lakh. Khushi is saying 10 lakh. Okay. What about others? Manjeet. Okay. So Rupa is saying in lakhs. आप अपने आप देख लीजिए सर कितने लाख थे, but लाखों में थे. Okay. Dimple is saying 5 lakh. Fine. Now, क्या ग्रेजुएशन के लोगों ने अप्लाई किया होगा? Yes or no? Can I get the quick answer in yes or no? Yes. So now I can see the students are, writing and they are listening. Fine. पोस्ट ग्रेजुएट ने किया होगा आपके जैसे लोगों ने? No. Oh, all are yes. Dimple is saying no. Okay. Fine. Now, डॉक्टरेट ने किया होगा क्या? डॉक्टरेट डिग्री टेक्स 5 years after your post graduation. ओके. आपकी लाइफ के जो अच्छे दिन होते हैं ना, आई शुड नॉट से अच्छे दिन, पॉलिटिकल हो जाएगा, बट लेट मी से आपकी लाइफ के जो गोल्डन डेज या गोल्डन ईयर्स होते हैं ना, वो निकल जाते हैं अगर आप पीएचडी करते हो तो. अंजलि मैम है मेरे साथ, कुछ और भी डॉक्टरेट होंगे, उनको पता है दैट द लाइफ ऑफ पीएचडी इज नॉट दैट इजी. आप सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हो एंड बहुत सारी चीजें होती हैं. तो पीएचडी ने नहीं अप्लाई किया होगा. कार्तिक, शीतल एंड अदर्स आर सेइंग. नाउ देखिए 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया था जी, नॉट इन 5 लाख और 10 लाख. 23 लाख लोग थे जो पीएन बनना चाहते थे, जिसमें से 1.5 लाख लोग ग्रेजुएट थे, इंक्लूडिंग बीटेक, बीबीए, बीसीए,
टेक्निकल डिग्रीज 25,000 पोस्ट ग्रेजुएट थे, आपके जैसे कुछ लोग, आपके जैसे मतलब आपके जैसे डिग्री वाले लोग, MBA, even technical degrees, MCAs, MTech people were there, and 250 people were there who completed their doctorate and they wanted to become peon. These all are the facts. Now, अगर आप आज भी गूगल के सर्च बार में डालेंगे एडवर्टीजमेंट फॉर 368 PN पोस्ट एट गवर्नमेंट सेक्टर इन यूपी, यू विल सी दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स. आप देखिए स्क्रीन को ध्यान से, ये न्यूज हिंदुस्तान टाइम, इकोनॉमिक्स टाइम, द हिंदू, हर जगह आई थी कि इंडिया में ऐसा क्यों है कि लोग PhD करने के बाद भी PN बनना चाहते हैं. इट वॉज अ बजिंग स्टोरी अक्रॉस द कंट्री इन प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. Now let me tell you one thing here. This was the time when I left my government job. I was working in BSNL, okay, in Hisar only. I left my government job and I started to do my PhD. तो एक दिन जब मैं एज ए स्कॉलर बैठा था तो हमारे टीचर अखबार की एक कटिंग लेके आए कि देखो PhD करने के बाद लोग क्या कर रहे हैं, PN बनना चाहते हैं. उस दिन मेरे को डर लगा था कि यार मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के गलती तो नहीं कर दी है. In 2014 I resigned. In 2015 I was doing my coursework. So at that time, one professor came with a cutting in the newspaper in the hand. After PhD, लोग PN बन रहे हैं. And leaving the government job and coming to that field, at that time मुझे डर लगा था. इसीलिए ये एग्जांपल मैं हमेशा जब भी डिस्कशन करता हूँ रखता हूँ. अब गवर्नमेंट के सामने क्या चैलेंज था? गवर्नमेंट को लगा कि कुछ 10-20 हजार 50 हजार लोग आएंगे तो हम उनका इंटरव्यू ले लेंगे. बट नाउ कंडक्टिंग द इंटरव्यू फॉर 23 लाख पीपल, जस्ट इमेजिन कितना टाइम लगेगा. Then government plan that we will have a written test. But what to ask in the question paper when there are people 5th pass, 8th, 10th, 12th, BTech, MBA and PhD? So it was a tough call for the government. एक और सिनेरियो थोड़ा जल्दी से देखते हैं. 2018, the time when I was about to complete my PhD, अगेन एक मार्केट में न्यूज आई कि यूपी में जॉब निकली है मैसेंजर बॉय. मैसेंजर बॉय कौन होता है जी? ही इज लाइक अ पोस्टमैन, डाकिया जैसे होता है. ये जॉब निकली थी पुलिस डिपार्टमेंट में. सिर्फ 62 वैकेंसी थी, 62. इस बार देखिए क्या होता है. क्वालिफिकेशन अगेन 5वीं पास, और आपको साइकिल चलाना आना चाहिए जी, क्योंकि आपको पोस्टमैन वाला काम करना है. सो यू शुड नो आपको साइकिल कैसे चलती है. इस बार 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया जी. 62 पोस्ट थी, 50,000 ग्रेजुएट थे, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट थे. सरप्राइज देखिए क्या है. इस बार PhD किए हुए 3,700 पीपल थे जो बनना चाहते थे मैसेंजर बॉय. Now, my question to every one of you, and now I request the host to allow the students to unmute also, if possible. Why people with high qualifications are applying for the lower position? देखिए, हमें समाज में PN चाहिए, इट्स ओके. हमें समाज में स्वीपर भी चाहिए. बट मेरा क्वेश्चन ये है, why after MBA, why after PhD, why after MTech? या चलिए मैं आपके लिए आसान करता हूँ इस क्वेश्चन को. क्या जो 2 सिनेरियोज मैंने आपको दिखाए ये दिखाते हैं कि देश में बेरोजगारी है? अब हम now I want you people to speak for next 1-2 minutes. क्या ये 2 सिनेरियोज हमें ये दिखाते हैं कि देश में बेरोजगारी है? Any one of you? I request some of you to unmute and be a part of the conversation. Yes, sir. So Khushi is saying कि बेरोजगारी है. Sachin is also saying the same. Okay. Any another reason? Yes, can I say something? Please. So I think people don't have that much marketable skills, and they have an inclination towards government job. Yes. Yes, I think. अभी एक बहुत वैलिड पॉइंट बोला है राजन ने कि लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए. ये दोनों के दोनों एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब के थे, अगर आपने नोटिस किया तो. ठीक है जी. चलिए, अब एक ईमानदार, देखिए फिर कैमरेज आपने बंद कर लिए हैं तो फिर ऐसे लगता है कि मैं बॉक्स से बात कर रहा हूँ, डब्बों से बात कर रहा हूँ, है ना. फिर मेरी एनर्जी भी डाउन हो जाती है. सो 2-3 बार हमने आपको रिक्वेस्ट किया. इट इज गुड. आई मीन अगर आपके कैमराज ऑन रहते हैं तो मुझे लगता है मैं जिंदा लोगों से बात कर रहा हूँ. अदरवाइज मुझे लगता है कि मैं रेडियो पे मन की बात टाइप कुछ चल रहा है, लोग सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे. आपके लिए स्पेशल एफर्ट्स किए गए हैं इस प्रोग्राम के लिए. जैसे मैंने बताया, मैंने भी स्पेशल टाइम निकाला है इसके लिए. तो लेट अस थोड़े बहुत जितने भी लोग ऑन कर पाएंगे इट विल बी गुड. चलिए, हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब चाहिए. हाँ जी. अब एक ईमानदार जवाब देंगे आप मुझे. हाँ, अभी आज की डेट में अगर मैं अभी इमीडिएटली आपको जॉब ऑफर करता हूँ पियोन के लिए, गवर्नमेंट जॉब, कितने लोग जो करने के लिए रेडी है? ईमानदार जवाब देंगे. गवर्नमेंट है, इसमें कोई शर्म नहीं है. हाँ,
नो सर, मुस्कान कह रही मुझे तो नहीं करना। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? नो सर। ओके, तान्या ने मना कर दिया। No, अच्छा चलो, इस नो सर को यस सर अगर ये है भी, ओके, तो मंजीत ने ऑनेस्ट आंसर दिया, फिर से गवर्नमेंट जॉब आई विल डू। ग्रेट, गुड दैट ही इज ऑनेस्ट इनफ। नाउ गवर्नमेंट जॉब करना क्यों है? व्हाट आर द रीजंस फॉर द गवर्नमेंट जॉब? पहला रीजन क्या है भैया? काम नहीं करना पड़ता? हाँ, ऐसा लगता है आपको? ओके, जॉब सिक्योरिटी, परमानेंट हो जाते हो आप, स्टेबिलिटी, यस, सिक्योरिटी, फाइन। नहीं, पर ये किसी ने नहीं बताया। ऐसा भी हमें लगता है ना कि सरकारी में काम नहीं करना पड़ता। सिक्योरिटी इज द आंसर विच मोस्ट ऑफ यू आर राइटिंग। ओके, रेगुलर फाइनेंशियल इनफ्लो, लेस वर्कलोड, अभिषेक, यस, काम का प्रेशर कम है। अभिषेक या अदर्स भी, जितने भी लोग बैठे हैं, आप में से कोई ना कोई, किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई बैंक में होगा जरूर, गवर्नमेंट बैंक में भी। आपने उनसे कभी पूछा है कि उनको काम कितना करना पड़ता है, वो कितने बजे घर आते हैं? एनी आइडिया? आपको पता है ना? एक बार आई वॉज ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन, ओके, सो देयर वाज अ डिस्कशन गोइंग ऑन। एक डिस्कशन चल रहा था कि भैया, एक पे कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने बोला कि बैंक में नौकरी के लिए बच्चे को तैयारी करवानी है। तो सामने वाला बैंक में ही था, वो कहता जी इसको ना फौज में भेज दो, बैंक में मत भेजना। अभिषेक कह रहा है डिफाइंड वर्क आवर्स। ओके, देखिए, राइट नाउ वी आर नॉट इन द डिबेट ऑफ गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब, but as I told you, I worked in BSNL full-fledged government job in my hometown, Hisar only. I worked with various private companies. I started my own venture also. Right now, again, I'm in a government job. But my experience says that ये एक myth है कि सरकारी नौकरी में काम नहीं करना पड़ता. Nowadays, there are targets in the private companies, in the government jobs also. There are performance appraisal in the government companies also. Right now, I'm working in India's first skill university. And you will not believe, day before yesterday, we were having a holiday. But in night, 8 o'clock, a meeting started. Honorable Vice Chancellor were there, Registrar sir were there, I was there, and we were working on a policy framing, something like that. And the meeting ended at 11 o'clock in the night. I'm a government employee, okay. So nowadays ये बदल गया है, ये सिनेरियो चेंज हो गया है कि सरकारी में तो 9 से 5 ही काम करना है या छुट्टी वाले दिन काम नहीं करना है. Today also there is a holiday for me, but I am with you. So now ये एक मिथ है कि सरकारी में काम नहीं करना है. सिक्योरिटी की जो लोग बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइएगा, कोरोना के बाद खासकर, क्या आप में से कोई ये गारंटी ले सकता है कि हम जिंदा रहेंगे अगले दिन? या थोड़े दिन पहले तो आपको पता है क्या हालत हो गई थी सबकी, है ना? तो आई एम नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट जॉब, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट गवर्नमेंट जॉब सिर्फ इसलिए करना है कि काम नहीं करना पड़ेगा, या इसलिए करना है कि वहां पर सिक्योरिटी है, तो ये अभी थोड़ा चेंज हो गया है. सरकारी एम्प्लॉय का भी, अभी आपने किया नहीं है तो आपको पता नहीं है, जो यहाँ पर है, जो टीचर्स हैं उनको पता है, हमारा भी परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है हर साल. जैसे हमारे भी कुछ डिफाइंड एरियाज है कि यू हैव फुलफिल्ड दैट और नॉट. इफ यू हैव नॉट फुलफिल्ड, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर यू आल्सो. आफ्टर मोदी जी इज नॉट गोइंग टू स्पेयर एनीवन. मोदी सरकार के बाद देयर इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर एवरीवन. अभी सरकारी नौकरी वैसी नहीं रही है जैसा आप लोगों को लगता है. बट अगेन, आई एम नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट जॉब. इफ यू वांट टू डू दैट, यू शुड गो फॉर दैट. ओके, चलिए वापस से आते हैं डिस्कशन पे. ये मैंने जानबूझ के डिस्कशन आपसे किया, मैं करना चाहता था ताकि एक मिथ ना रहे कि सरकारी नौकरी में काम नहीं करना पड़ता है. तो पॉसिबल रीजंस क्या थे? एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ देश में बेरोजगारी है, आप सबने यस बोला. दूसरा रीजन सरकारी नौकरी चाहिए, यही हमने अभी तक बातचीत की. पर कहानी अभी बाकी है. देयर इज अदर साइड ऑफ द स्टोरी. वो कहानी क्या कहती है जी? हर साल IITs, IIMs, Center of Excellence, various government department and in various private department, a lot of seats remains unvacant. मतलब लोग ही नहीं मिलते हैं. एक तरफ मैं अभी बोल रहा था 23 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं पियोन बनने के लिए, बट एट द सेम टाइम आई एम टेलिंग टू यू दैट वी आर नॉट गेटिंग द राइट कैंडिडेट. यानी जॉब्स हैं पर कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं. और ये एग्जांपल मैं आपको हर फील्ड में दे सकता हूँ. यू ऑल आर डूइंग MBA, तो बैंकिंग एंड फाइनेंस की आप बात कर लीजिए. बैंकिंग सेक्टर में देयर इज अ हाई रिक्वायरमेंट फॉर द टैलेंटेड पीपल. मिल ही नहीं रहे हैं. आई एम क्लोजली वर्किंग विद मारुति. ओके, we are having one program with Maruti. Maruti is asking us just to increase the numbers of the graduates. They want every year 100 plus graduates from us. So the issue is not about कि मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट है. रियल इशू कुछ और है. व्हाट इज अ रियल इशू? रियल इशू ये है कि जी आप में स्किल्स नहीं है. आपने MBA तो कर लिया, बट MBA करने के बाद उस काम को करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो हमारे पास नहीं है. दैट इज द मेजर इशू.
एक टाइम क्या था, आज से 15-20 साल पहले क्या होता था, आपने एमबीए किया, आपको एमबीए किया इसलिए नौकरी मिल जाती थी। बट अब वो टाइम नहीं है, अब आपको अपनी स्किल्स को शोकेस करना पड़ेगा। एमबीए तो अब हर दूसरा इंसान कर रहा है, आपको सबको पता है। तो अगर आप मेरे पास आए कि सर मैं एमबीए, मुझे जॉब दे दूं, देयर इज नो जॉब। बट अगर आप मेरे पास लेके आए कि सर मेरे पास ये स्किल्स हैं जिसके अंदर मेरी एक्सपर्टीज है, तो देयर इज अ जॉब फॉर यू। और वो एक नहीं, देयर आर वेरियस जॉब्स फॉर यू। I have done PhD, okay, but if I do not know how to handle the students, then what I will do? Of course, I will not have the confidence. Then I will try to, fill the forms for clerical jobs or something like that. But now I have 100% confidence on my skills, and I got various opportunities. So, सिर्फ education या सिर्फ आपकी जो MBA degree है ना जी, that is not going to help you. And this is the high time. This is the high time after Corona that we enhance our skills. पुराने जमाने में जो रेडियो होता था ना, उसको ट्यूनिंग करना पड़ता था, ट्यूनिंग करते थे हम लोग. So this kind of program, जैसे अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं, या आपके टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं, या आपने कोई सेमिनार्स लगाए, या जो भी आप अदर एक्टिविटीज करते हैं, these all are the ways to enhance your skills. मेरे पास मान लीजिए खुशी और राजन, ये 2 बच्चे आते हैं कि सर हमें जॉब दे दीजिए, मेरे पास एक ही जॉब है, तो मैं किसको दूंगा? दोनों के पास एमबीए है, दोनों के पास इक्वल, मान लीजिए उनके मार्क्स भी सेम है, तो मेरे को एक ही बच्चे को चूज करना है. टू whom I will select? I will select the student who have something extra, who has a different skill set, who can contribute to my company. So let us try to upgrade our skills, and let us try to upgrade our knowledge if you want to sustain in this market. Before going forward, two examples, two real life examples I would like to share with you, that if you will not upgrade yourself, अगर आप अपनी skills को improve नहीं करते हैं, अभी हम बात करेंगे कि कौन सी skills चाहिए हमें as a MBA, that I will discuss with you. But before that, what is the importance of having something extra than your classmate? देखिए, जब ये कोरोना आया, ध्यान है किस मंथ में आया था, कौन से साल में कोरोना फर्स्ट टाइम आया था? एनी आइडिया? I think November 2019, I think. No. In India, sir. हाँ, इन इंडिया, हाँ, वो ठीक है, इन इंडिया में, हाँ, मार्च में, मार्च कौन सा साल था? मार्च 2020. मार्च 2020 में आया था इंडिया में. बिल्कुल. तो मार्च 2020 में कोरोना आया, एंड जब कोरोना आया ना, मैं गुवाहाटी में एक प्रोग्राम कर रहा था टीचर्स के लिए, मैं गुवाहाटी गया हुआ था, तो अचानक से बात चले कि मास्क ले आओ, तो मास्क एक नई चीज थी, तो पास के स्टोर पे गए, क्योंकि मैं गवर्नमेंट का प्रोग्राम कर रहा था, बोले जी मास्क दे दो, बोला वो क्या होता है, उसने भी बोला नहीं है, तो फिर कुछ करके हमने मास्क रेंज की, ट्रेनिंग हो गई, फिर पता लगा कि कर्फ्यू लगने वाला है, कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू, मास्क, ये सब नई चीजें थी उस टाइम के लिए, तो ट्रेनिंग बीच में खत्म हुई, मैं एयरपोर्ट पे आया, तो कुछ लोग ना नाक पे ऐसे हाथ रख के खड़े थे, जैसे उससे कोरोना खत्म ही रुक ही जाना था, पर क्योंकि वो नया नया फेज था, किसी को पता नहीं था, तो मेरे को भी डर लग रहा था, मैं भी थोड़ा साइड में खड़ा था कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए. सो फाइनली आई लैंडेड टू चंडीगढ़. तो अगले दिन बोला गया कि जी जनता कर्फ्यू लग गया था एकदम से, आपको याद होगा. तो जनता कर्फ्यू से पिछले दिन, आई स्टिल रिमेम्बर, मैं गाड़ी चला के हिसार आ रहा था, तो सारी सड़कें खाली, सब सुनसान, एंड सडनली देयर इज नो वर्क. At that time, I was working as a freelance master trainer. I used to give the trainings for various organizations. अब क्या हुआ? क्योंकि स्कूल्स बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटीज बंद, सेंटर्स, स्किलिंग के सेंटर्स बंद हो गए. अब सेंटर बंद हो गए तो वहां पे बच्चे नहीं जा रहे हैं, बच्चे नहीं जा रहे तो टीचर नहीं चाहिए, टीचर नहीं चाहिए तो मेरी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं मास्टर ट्रेनर था, मैं टीचर्स को पढ़ाता था, तो जी मैं भी घर बैठ गया. अब मेरा ब्रेड एंड बटर, मेरी रोजी रोटी भी पढ़ाने से ही थी, कोई काम था ही नहीं. तो मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया, लेट अस कन्वर्ट दिस ट्रेजेडी इनटू अपॉर्चुनिटी, आपदा को अवसर में बदलते हैं. तो अपोजिशन पार्टी ने इसको अदरवाइज लिया कि ये देश में कोरोना आ रहा है, इनको इसमें भी अवसर दिख रहा है. बट वन नाइट आई वाज जस्ट लाइंग ऑन द बेड, एंड मुझे लगा कि यार अब क्या कर सकता हूँ मैं, व्हाट आई कैन डू. सो सडनली आई रियलाइज दैट कि इंडिया में ये ऑनलाइन पढ़ना एक नया कॉन्सेप्ट था. इंडिया में ऑनलाइन, हमारे यहाँ माइंडसेट क्या होता है, आप एक बार याद करो, जब आप छोटे थे, आपके पेरेंट्स ने टीचर को स्कूल में सेल वो दे दी आपकी फीस, अब इसको मारो पीटो कुछ भी करो, इसको स्कूल में पढ़ा के भेजो. घर में पढ़ने का कल्चर हमारे यहाँ इंडिया में नहीं था जनरली. हाँ, तो ना पेरेंट्स को आदत है, ना बच्चों को आदत थी, ना टीचर्स को भी आदत थी, लेट मी टेल यू, क्योंकि टीचर्स ने भी कभी ऑनलाइन पढ़ाया नहीं था. देन आई रियलाइज दैट व्हाई नॉट टू ट्रेन द टीचर्स दैट हाउ टू टीच द ऑनलाइन. टीचर्स को ही सिखाते हैं कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाएं, पर मैं सिखाऊं कैसे, मुझे भी नहीं आता था, क्योंकि ये तो मेरे लिए भी नया था. सो एट दैट टाइम आई अपग्रेडेड माई सेल्फ, आई अपडेटेड माई स्किल्स. ये सिर्फ जूम पे पढ़ना इज नॉट ऑनलाइन टीचिंग, है ना.
जैसे अभी आप लोग देखो, 5 लोगों ने मेरी रिक्वेस्ट मानी है चौथी बार कहने के बाद भी, अब काफी लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से तो डंडा भी नहीं है मेरे पास, है ना, और आप बड़े भी हो तो मैं आपको अब तो वो भी नहीं कर सकता। अभी एक नहीं कर लिया हूँ ना। दिस इज माई स्ट्रेटेजी टू गेट योर कैमराज ऑन। मैं वैसे गारंटी से बोलता हूँ, अगर आप मेरे साथ एक दिन रहेंगे ना, तो मैं आपको इतनी बार बोल दूंगा कि या तो आप मीटिंग लीव कर देंगे या आप ऑन ही कर लेंगे। देखिए, जब आपके आपके हंसते हुए चेहरे दिखते हैं ना, तो इट गिव्स एनर्जी टू द पार्टी, टू द स्पीकर। अदरवाइज तो फिर अभी मुझे लगेगा कि 11:30 हो गए, 15-20 मिनट में खत्म करो इसको। चलिए, एक ना हरियाणा में एक वर्ड होता है ढीठ, है ना, तो मुझे पता है वो हम हैं, है ना, तो आप है तो मैं भी वहीं से हूं, तो मैं भी हूं, तो मैं तो बोलता रहूंगा लास्ट तक। देखते हैं कितने लोग चेंज हो पाते हैं। चलिए, तो हुआ क्या, डिस्कशन पे वापस आते हैं। मैंने सीखा कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जा सकता है। आई अपग्रेडेड माय स्किल्स, आई अपडेटेड माय सेल्फ, और मैंने नेशनल लेवल पे कुछ वर्कशॉप्स फ्लोट की टीचर्स के लिए कि क्यों ना हम ये सीखे कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है। गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द कंट्री। मुझे कुछ नॉमिनेशंस IIT से भी मिले थे, और हमने काफी सारा पैसा भी कमाया और काफी सारा नाम भी कमाया। ये क्यों हो पाया? क्योंकि आई अपग्रेडेड माई सेल्फ एट दैट टाइम, इट वॉज रिक्वायर्ड। मैं ये नहीं बोल सकता था कि मैं तो PhD कर रखा, मुझे काम दो, कोई नहीं देगा, क्योंकि मैंने उस स्किल्स को इंप्रूव किया कि भैया मैं औरों को ये सिखा पाऊं कि ऑनलाइन पढ़ाना कैसे है, तो मुझे काम मिला। वन एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, वेरी क्विकली बाय लुकिंग एट टाइम एज वेल। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था, उनके पास 3 सुपर ट्रेनर थे। सुपर ट्रेनर कौन होते हैं? जो मास्टर ट्रेनर्स को पढ़ाते हैं। मास्टर ट्रेनर ट्रेनर्स को पढ़ाते हैं, और ट्रेनर्स आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो वो जो 3 सुपर ट्रेनर थे ना जी, उनमें से 2 आर्मी से रिटायर्ड थे। एक दिन का 20,000 रुपीज लेते थे वो ट्रेनिंग करवाने का। जस्ट एंड दे वर ब्रिलियंट। उनमें से किसी के अंडर मैंने भी एक ट्रेनिंग किया हुआ था। तो जब कोरोना आया, तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में एक दिन बात कर रहा था। मैंने कहा जी वो सुपर ट्रेनर कहाँ है? कहते जी वो आजकल नहीं पढ़ाते। मैंने कहा क्यों? वो तो ब्रिलियंट थे। कहते जी वो क्लासरूम में तो ब्रिलियंट थे, पर ऑनलाइन उनसे मैनेज नहीं हो रहा था, म्यूट करना, अनम्यूट करना, PPT शेयर करना। तो क्या हुआ जी? आउट ऑफ द मार्केट, मैंने उनकी जगह ले ली। मेरे लिए तो फायदा हो गया खैर, बट वो मार्केट से बाहर हो गए क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। आप मेरा इन दोनों कहानी का पर्पस समझ रहे हैं? मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि अपडेट करना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ MBA करना इज नॉट अपडेटिंग योरसेल्फ, वो तो एक डिग्री है जो आप अर्न कर रहे हो। तो जो भी स्किल सेट है ना, आप मतलब आप को इंटरव्यू देने के लिए आओगे, कंपनी को इंटरव्यू देने के लिए आओगे, तो ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव समथिंग एक्स्ट्रा देन योर फेलो पर्सन। तो अब मुझे ये बताओ, एजुकेशन और स्किल्स अलग अलग है क्या? आप अभी आप सब एजुकेशन ले रहे हो, है ना, यू ऑल आर गेटिंग द एजुकेशन, यू ऑल आर डूइंग द MBA। फिर स्किल्स है क्या? मतलब स्किल्स कैसे आएंगी फिर मेरे पास? तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग और गिविंग द सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन, स्पेशली एट अ स्कूल और यूनिवर्सिटी। आप स्कूल में हो, आपको पढ़ाया जा रहा है, आपका एक सिलेबस होता है, आपका एक सेमेस्टर है, आपने इंटरनल दिया, एक्सटर्नल दिया, आपने पढ़ लिया, दैट इज योर एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन। स्किल्स क्या होती है जी? स्किल्स का मतलब होता है कोई भी काम आप विद एक्सपर्टीज कर पा रहे हैं क्या। स्किल्स का मतलब होता है कि जो आपने एजुकेशन में सीखा ना, उसको आप कितना इफेक्टिवली परफॉर्मेंस के अंदर उतार पा रहे हैं। आपने बोला जी मैंने मार्केटिंग तो सीख लिया, पर क्या मार्केटिंग स्किल्स है आप में? मैंने इमीडिएटली आपको बोला कि मुझे ये पेन बेच के दिखाओ। सो दैट इज अ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड इन योर एजुकेशन। इंडियन गवर्नमेंट इज फोकसिंग मोर ऑन स्किल्स नाउ। I am working in Shri Vishwakarma Skill University, that is India's first skill university. हमारे यहाँ पे जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो हम थियोरटिकल कॉन्सेप्ट्स की बजाय प्रैक्टिकल और स्किल्स की ज्यादा बात करते हैं। कि आपने 40 सब्जेक्ट पढ़ लिए, दैट्स ओके, बट उन 40 सब्जेक्ट में से कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो रियली। मतलब उन 40 सब्जेक्ट्स की जो नॉलेज है, क्या उसके अंदर से 4 या 5 की स्किल्स है आपके पास? सपोज यू वांट टू मेक अ करियर इन बैंकिंग, ओके, तो क्या बैंकिंग प्रोडक्ट्स की एक्चुअल नॉलेज है आपको? क्या आपको ये पता है कि कस्टमर को आप कैसे कन्विंस करोगे? क्या आप इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर पाओगे एक्चुअल में? सो इफ यू कैन डू दैट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप GGU से है या आप IIT से हैं या आप IIM से हैं, देयर विल बी अ जॉब फॉर यू। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एंट्री के बाद जो प्रोग्रेशन होता है ना लाइफ में, मान लीजिए अभी आपकी जॉब लगी 30,000 रुपये महीना या 20,000 रुपये महीना, दैट्स फाइन, बट वो जो प्रोग्रेशन है, वो जो करियर के अंदर अपलिफ्टमेंट है, वो तभी होता है जब आप अपना स्किल सेट शोकेस करते हैं। मोदी जी का स्टेटमेंट था, लेट अस मेक इंडिया द स्किल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। आओ भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाते हैं, कि हम इतने स्किल्ड लोग पैदा करें कि ना केवल हम इंडिया की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाए, बल्कि हम बाहर भी स्किल्ड लोगों को भेज पाए। फिर अभी लेटेस्ट एक स्टेटमेंट आया, स्किल, रीस्किल एंड अपस्किल। ठीक है, आप में कुछ स्किल्स हैं, आप अपने आप को रीस्किल भी करते रहो, अपने आप को अपस्किल भी करो। मतलब आपने एक चीज आज सीखी, फिर अगले लेवल पे जाओ, फिर अगले लेवल पे जाओ, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। क्वेश्चन है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है या स्किल?
अभी आप बोलोगे सर आपने तो बताया स्किल इंपॉर्टेंट है, बट ऑफकोर्स एजुकेशन भी चाहिए। अब एक जॉब है जिसकी एंट्री लेवल ही मास्टर्स है या एमबीए है, तो एजुकेशन तो आपको लेना ही है, बट उस एजुकेशन के साथ साथ यू हैव टू कम विद द स्किल सेट्स। अब आईएम के बच्चे की प्लेसमेंट क्यों हो जाती है? उसने भी तो एमबीए किया है, बट उसने एमबीए के साथ साथ वो स्किल्स को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट किया है। जब वो अपने वहां पे इवेंट्स कराते हैं, जैसे भी आपके यहाँ भी इवेंट्स होते रहते हैं, मैंने देखा है। HSB इज वेरी वेरी pioneer example, at least in Haryana, let me tell you. I did my graduation from GJU itself, okay, years back in 2008, I guess. उस समय ये सब चीजें नहीं होती थी, प्लेसमेंट सेल नहीं होता था, but now I keep on having a look on your social medias कि यार रोज कुछ ना कुछ इवेंट आप लोग कर रहे हो। अभी आप शायद स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड आप कुछ करने वाले हैं। सो ये सब चीजें जो है ना, ये these things will help you to acquire the skills। जब आप खुद चीजों को मैनेज करते हो। मैं बिट्स पिलानी में पढ़ता था, एक टाइम में बिट्स पिलानी में था। वहां पर जो फेस्ट होते थे, फेस्टिवल्स होते थे, कल्चरल चीजें या टेक्निकल, 100% वो बच्चे ही करते थे, उसमें टीचर का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता था। और उसकी वजह से वो लोग बहुत चीजें सीख जाते थे जो उनको प्लेसमेंट्स में भी हेल्प करती थी। मैंने देखा है कि अभी कुछ चीजें आप भी करते हो मैनेज, आई नो दैट, बट अगर आप ऑनरशिप लेंगे ना एक किसी भी एक चीज की, तो वो आपको तैयार करती है अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। और पर्पस भी यही है। अभी आपका जो इंडस्ट्री इंटीग्रेशन सेल है या फिर हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस के अंदर जितने भी टीचर्स हैं, इन सबका भी बेसिक पर्पस यही है। आपको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, कभी कभी आपको लगता होगा ना कि यार सारा काम मुझसे करवा दिया है, मुझे बोल दिया गया, उसका एक पर्पस होता है ताकि आप रेडी हो जाए उस लाइफ के लिए जो आपका वेट कर रही है। एंड लेट मी टेल यू, कॉर्पोरेट लाइफ इज नॉट इजी। वहां पर आपकी मम्मी पापा या टीचर नहीं होगा जो आपका हाथ पकड़ के आपको कुछ काम करवाएगा। वहां तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना आपके ऊपर से छलांग लगा के दूसरा निकल जाएगा। कॉर्पोरेट लाइफ ऐसी ही है। तो उसके लिए आपको मेंटल टफनेस की जरूरत है, जो आपको देने की कोशिश की जाती है ड्यूरिंग योर प्रोग्राम। अगर आपको कोई भी टास्क असाइन किया जाता है तो उसको उसके लिए परेशान नहीं होना होता है, उसको आप दिल से करें। लीजिए अब आ जाते हैं, क्या ऑप्शन है एमबीए के बाद? एमबीए के बाद क्या करना है मुझे ईमानदारी से बताओ। एमबीए हो जाएगी अभी थोड़े दिनों में, उसके बाद प्लान क्या है अपना? मुझे चैट बॉक्स में लिख दो। 44 पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, 20-25 आंसर तो मुझे चाहिए भाई। एमबीए के बाद क्या करना है जी? दुकान खोलनी है, नौकरी करनी है? मैं तो आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, अपने आप बताओ आप मुझे। ओके, मोटो जी नाम से कोई है, जॉब करनी है। विकास इज वेरी ओके विद कॉर्पोरेट जॉब, ओके, बट व्हाट अदर्स? देखिए जितने लोग लिख रहे हैं इसका मतलब उतने लोग ही मुझे सुन रहे हैं। कुछ तो सोचा होगा ना एमबीए के बाद घर बैठना है सर, दैट्स ओके। ये देखिए रूपा ने बिल्कुल स्पेसिफिकली बोला मुझे बैंकिंग सेक्टर में जॉब करनी है। पलक अभिषेक कह रहे हैं जॉब करनी है, कहाँ करनी है नहीं पता पर करनी है। भारत कह रहे हैं कि कुछ टाइम मैं जॉब करूंगा फिर अपना काम करूंगा, ओके हम उस पर भी आएंगे। नम्रता भी कह रही है बैंकिंग सेक्टर में जॉब चाहिए, ओके। अच्छा ये एमबीए फाइनेंस वाले बोल रहे हैं क्या? बैंकिंग, ओ टेलीकॉम में चाहिए निपुण को, फाइन। अच्छा एक डिस्क्लेमर ये है कि मैं जॉब अभी देने वाला नहीं हूँ, कभी आप इसलिए लिख रहे हो कि सर अभी दे देंगे। हाँ अभी मेरे पास कोई जॉब नहीं है। नम्रता सिंह फाइनेंस, ओके। कुछ लोग लिख रहे हैं कि अगेन कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस लेना है 2-3 साल के बाद, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करना है। चलो ये भी एक ऑप्शन। चलिए तो आई गेस जितने एक्टिव लोग थे उन्होंने मुझे रिप्लाई कर दिया है। अच्छा एक बेटा, जब भी आप ये आजकल ऑनलाइन मीटिंग्स बहुत सारी होती है ना, अपने आप को रीनेम कर लिया करो। ये तो बेसिक सी बात है। जैसे अभी आ रहा है दा हीरो, अब दा हीरो ने बोला जी 2-3 साल काम करेंगे आप हीरो हो सकते हैं, बट कोशिश करें आप अपना नाम डाल लें यहाँ पे, है ना। ये बड़ा इजी सा स्टेप होता है ताकि ऐसे पता रहे, आपकी रिकॉग्निशन हो। ऑप्शन क्या क्या है जी जो आप ही ने बताए? वैसे सरकारी नौकरी किसी ने नहीं बोली सरप्राइजिंगली। हाँ उस टाइम तो आप बोल रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब अच्छी होती है, अभी तो किसी ने नहीं बोली करनी है। एंड डोंट टेल मी कि सर मिलती ही नहीं है। चलिए हायर स्टडीज एक ऑप्शन है। अब आप बोलोगे सर एमबीए तो कर लिया और कितना पढ़ेंगे आप, बट एक ऑप्शन तो है, यू कैन गो फॉर पीएचडीज। बट आप फिर से बोलोगे कि सर आज ही तो आपने बताया पीएचडी के बाद भी पीए नहीं बनने के लिए लोग जा रहे हैं। निखिल कह रहे फाइनेंस मिनिस्टर बनना है। निखिल हाई एस्पिरेशन, हाँ। विकास ने एक पॉइंट बोला गवर्नमेंट जॉब में इंक्रीमेंट नहीं मिलता है जितना कॉर्पोरेट में मिलता है, वेरी राइटली। ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट गवर्नमेंट में क्या होता है सब बराबर होते हैं। बट आजकल फिर भी एप्रिसिएशन है, पहले वाली बात नहीं है। बट हाँ जितना हाइक आपको प्राइवेट में मिलेगा उतना नहीं मिलेगा गवर्नमेंट। पर हाइक मिलेगा कब? जब आपके अंदर स्किल सेट हो। चलिए अगली चीज क्या है? पहला ऑप्शन आप हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बैंक की जॉब्स एंड ऑल। आप प्राइवेट जॉब्स या कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए जा सकते हैं, आप फैमिली बिजनेस भी तो कर सकते हैं ना।
मैं जब पीएचडी कर रहा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से, तो मेरी पीएचडी की लोकेशन थी नियर टू किशनगढ़ या मकराना, एक जगह आपने नाम सुना, जहां पर पत्थर का बिजनेस होता है, संगमरमर का। किशनगढ़ का हर बच्चा हमारे यहाँ से एमबीए कर चुका है, हर बच्चा। पर उनको अपना फैमिली बिजनेस नहीं करना। मैंने कहा क्यों नहीं करना? कहते सर दुकान के गल्ले पे कौन बैठेगा। अरे मैंने कहा तुम लोगों का ऑलरेडी सेट बिजनेस है जो पूरे कंट्री में फैला हुआ है। आई मीन दे पीपल अर्न इन लैक्स पर डे। तो मैंने कहा व्हाई डोंट यू जॉइन योर फैमिली। बोला सर फिर एमबीए क्यों किया? मैंने कहा एमबीए में जो आपने सीखा है उसको आप फैमिली बिजनेस में लगाओ, उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसको ऑटोमेटेड करो, उसको आई मीन मॉडर्नाइज करो। तो कुछ लोगों ने किया। दिस इज आल्सो गुड ऑप्शन। अगर आप में से कुछ लोगों के फैमिली बिजनेसेस है और यू कैन थिंक टू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन एंटरप्रेन्योरशिप। इसकी तरफ किसी ने बात नहीं की है ना। हम अलग से कभी सेशन करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप पे, डिटेल से बातचीत करेंगे कि वो भी एक करियर ऑप्शन है। जैसे आप में से 2 लोगों ने लिखा कि सर 2-3 साल नौकरी के बाद मैं खुद का काम करना चाहूंगा। तो अभी टाइम नहीं है, वरना मैं आपसे पूछता कि 2-3 साल पहले नौकरी क्यों करनी। अगर उसका रीजन ये है कि सर पहले पैसे कमा लेंगे फिर करेंगे, तो इस थॉट में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये ऑप्शन है आपके सामने, और मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोग चाहते हैं कि नौकरी मिल जाए। ये एक कॉमन माइंडसेट है इंडिया में कि भैया नौकरी मिल जाए, नौकरी करना, दैट्स ओके, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद। अब नौकरी मिलेगी कैसे? अब देखो ये आप हैं ब्लैक ड्रेस में, वो चेयर नौकरी है, और वो जो नीचे वाली जगह पे आपने एमबीए कर लिया है। अब एमबीए के बाद ये छलांग लगानी है नौकरी तक, ये कैसे मिलेगी हमें? सबसे बड़ा इशू जो बच्चों के साथ है ना, एंड ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्टडीज कहती है, रिसर्च कहती है, वो ये है कि ट्रिपल ई की कमी है। ई ई ई, इसका क्या मतलब है? कुछ कुछ आइडिया इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? निखिल ने बोला है जॉब करने से ग्राउंड की चीजें पता लग जाती है, फिर सेटअप स्टार्टअप आसान होगा। ओके फाइन। ट्रिपल ई की फुल फॉर्म एनीवन? ये 3 प्रॉब्लम है हमारे बच्चों के साथ कि उनको नौकरियां क्यों नहीं मिल पाती है। चलिए, एनएसडीसी का मतलब है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। They did a research, they did a study that why students are not getting the job. This study was majorly done for skill development. There is a separate mission of Indian government named with the skill development. तो आउटकम क्या आया? बच्चों में 3 कमियां हैं। नंबर 1 इंग्लिश, हमें इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है। दूसरा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, और तीसरा है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। राहुल थोड़ा सा अलग हो गया, बट गुड ट्राई। भारत थोड़ा सा अलग हो गया, या एम्प्लॉयबल, यू डिड इट, यू अपने एक को ठीक से पहचाना। फिर अब मुझे बताइए, ईमानदारी से बताइए, कितने लोग हैं जिनको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है? एक्चुअल में बोलने में होती है ना आप लोगों को भी? नहीं? ओके, विकास कह रहे मुझे होती है। अगेन मोटो समथिंग, सचिन कह रहे मुझे होती है। ओके, अब देखिए इंग्लिश जो है ना, वो लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है इसका मतलब आप इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं। हमें पता है इस बात के बारे में, पर अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश इज द कॉमन लैंग्वेज फॉर कॉर्पोरेट्स। तो इंग्लिश में कमांड तो हमें करनी पड़ेगी। मुझे याद है जब मैं बीटेक में था ना, तो हमारे टीचर हमें असाइनमेंट देते थे, है ना। तो डर लगता था कि यार अगर प्रेजेंटेशन देंगे, प्रेजेंटेशन बोलना चाह रहा था मैं, तो अगर मैं बच्चों की तरफ देखूंगा ना तो ये क्लासमेट दुष्ट है, ये हंसा देंगे। तो सारी की सारी प्रेजेंटेशन बोर्ड की तरफ देख के खत्म कर देते थे कि यार नंबर 2 कम मिल जाए, बट यार ये गड़बड़ करेंगे बच्चे, मजाक उड़ाएंगे, इंग्लिश में बोल रहे हो, समथिंग लाइक दैट। अभी थोड़ा टाइम चेंज हो गया, बट लेट मी टेल यू, आप प्रैक्टिस करो। हाँ विकास, मैं उसी टिप्स पे आ रहा हूँ कि इसको ठीक कैसे करें। देखिए आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि शायद हमारे घर में माहौल नहीं होता इंग्लिश, है ना। और हरियाणा के बच्चों को तो जब मैं वर्कशॉप देता हूँ तो हम बोलते हैं पहले में हरियाणवी से हिंदी पे आना है, फिर इंग्लिश पे आना है। वो भी एक इशू है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हैं, वेरी स्मॉल थिंग्स यू पीपल कैन डू। जैसे जो मैंने उस टाइम पे किया था, देखिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। लेट मी टेल यू, जब तक आप इंग्लिश को प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो होगा नहीं। आपको मैं बिल्कुल देखो एक बेसिक सी एग्जांपल बताता हूँ। मेरा बेटा बहुत छोटा है अभी, वो जिस स्कूल में जाने लगा ना गुड़गांव, जिसमें चंडीगढ़ में, तो वहां पे वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करते थे। तो अभी ही जस्ट आई गेस 4, अभी वो इंग्लिश में बोल लेता है। तो इंग्लिश का मतलब
एक्सपर्टीज नहीं है। इंग्लिश का मतलब प्रैक्टिस है। उसके स्कूल में हिंदी में बोलते ही नहीं है, तो वो मेरे को ही बोल देता पापा व्हाट आर यू डूइंग, जितना उससे बोलना आता है उसको। तो वो इससे एक चीज प्रूव होती है, इंग्लिश कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि जो आपको ग्रेजुएशन के बाद आएगी। इसका दूसरा एग्जांपल, अंग्रेज का बच्चा तो इंग्लिश बचपन से ही बोलता है ना। तो वो क्यों बोलता है? क्योंकि उसने उसको प्रैक्टिस की है। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लास में क्लोज ग्रुप बनाओ 3 लोगों का कि भैया हम आपस में इंग्लिश में बोलेंगे, हम हिंदी में नहीं बोलेंगे। अगर हिंदी में बोलेंगे तो आज समोसा तू खिलाएगा। दूसरे वाला आप पे हंसेगा कि देख अंग्रेज बन रहे हैं, बट लेट मी टेल यू प्रैक्टिस से ही होता है। एंड इसका मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं काफी टाइम इंग्लिश नहीं बोलता हूँ ना, व्हेन आई डोंट स्पीक इंग्लिश फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो मैं खुद भी अटकने लग जाता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया काफी टाइम से। बट बिकॉज वी आर लाइक एज असिस्टेंट प्रोफेसर आई जनरली ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश, तो वो फ्लो बन जाता है, फिर कंसिस्टेंसी आ जाती है। न्यूज़पेपर की एक सभी लोग बोलते हैं, पता नहीं आपको भी किसी ने वर्कशॉप में बोला होगा, इंग्लिश का न्यूज़पेपर बंधवा लो आप। मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ पहले महीने आप पढ़ोगे नहीं, आपके 200 रुपए खराब ही होंगे। पर वो 200 खराब होंगे तो आपको लगेगा यार एक दिन तो पढ़ लूं मैं इसको थोड़ा सा। टाइम टाइम देख के बैठ जाओ कि 10 मिनट में ये न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। मन नहीं करेगा तब भी मैं पढ़ूंगा। तो इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी, और इसका कोई भी सॉल्यूशन है ही नहीं। आप कोई ग्रामर याद कर ले, कुछ शब्दों को याद कर ले, टेंस सीख ले, उससे नहीं आएगी। जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस इट without thinking that what others will think about you. Whenever you get a chance to give a presentation in your classrooms, whenever you go to talk to your teacher, try to communicate in English. गलत होगा ना, that's okay, but एक दिन वो ठीक भी हो जाएगा with time. तो इंग्लिश पे हम सबको काम करने की जरूरत है, और सीरियसली करने की जरूरत है। क्योंकि इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, जॉब शायद अभी मिल भी जाएगी आपको, बट अगेन इफ यू आर लुकिंग फॉर द ग्रोथ, यू मे बी गोइंग फॉर अ प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु। मैं बेंगलोर गया था जब मेरी पहली जॉब लगी थी। आप बिलीव करेंगे कि बस में लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अब हिंदी में कुछ है ही नहीं, तो आप तो वहां जीवन भी नहीं जी पाओगे अपना अच्छे से। तो इंग्लिश तो मैंडेटरी है, बोलना नहीं तो एटलीस्ट समझना। समझ आपको आती है, आई नो, आप सब समझ तो लेते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट बोल क्यों नहीं पाते? क्योंकि देखिए, सुन, ये सेशन 1 घंटे से चल रहा है, आपकी क्लास में टीचर कितने घंटों बोलते हैं, तो आप सुनते हो इंग्लिश बार बार, तो वो तो आपको आ गई है, पर क्योंकि आप बोलते नहीं हो इसलिए वो चीज आपको आई नहीं। दैट इज अ सिंपल एग्जांपल। सो ट्राई टू मेक अ हैबिट कि यार मैं बोलूंगा इंग्लिश, आई विल स्पीक। और ये अभी जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आई मीन बाइलिंगुअल, तो मैं कुछ सोच थोड़ी ना हूँ कि नेक्स्ट लाइन में ये इंग्लिश में बोलने वाला हूँ। इट कम ऑटोमेटिकली टू योर माइंड। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 4 साल का बच्चा भी बोल लेता है थोड़ी बहुत। तो इट इज जस्ट अबाउट योर प्रैक्टिस। हाँ, इंग्लिश में बात करो बिल्कुल, जो आप लिख रहे हैं चैट में। तो पहला है इंग्लिश, उस पर हमें काम करना है। दूसरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इज अ बंडल ऑफ स्किल्स। क्या क्या? आपको रिज्यूम बनाना आता है या नहीं आता है? आपको इंटरव्यू देना आता है या नहीं आता है? आपको बातचीत, नेगोशिएशन आता है या नहीं आता है? आपकी जॉब लग गई, आपको पता है एमबीए के बाद या ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे बच्चे जॉब लग जाते हैं, पर 1 या 2 महीने बाद ही छोड़ के आ जाते हैं। नो व्हाई? सम टाइम दे डू नॉट नो। और ये एक मैं आपको बताऊं, स्टडी बेस्ड बात बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई मेल बच्चा है, उसकी जॉब लग गई, नाउ ही डू नॉट नो हाउ टू टॉक विद द फीमेल कोलीग्स, ही डू नॉट नो हाउ टू रिस्पेक्ट देम, ही डू नॉट नो व्हाट आर द लंच एटिकेट्स। कॉर्पोरेट की लाइफ बिल्कुल अलग होती है आपकी स्टूडेंट लाइफ से, लेट मी टेल यू। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में बहुत सारे स्किल सेट हैं, जिसके ऊपर अलग अलग वर्कशॉप्स आपकी होती भी रहती होंगी शायद। तो उन सब स्किल्स को भी आपको सीखने की जरूरत है। यानी आपने बोला सर मैंने एमबीए किया है, दैट्स ओके, बट अगर आपने रिज्यूम ही नहीं बनाया ठीक से, तो आपका पहला रिफ्लेक्शन ही खराब हो गया। और तीसरी चीज है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है खुद का रोजगार शुरू करना। इसकी तरफ हम सोचते नहीं है ज्यादातर लोग, बट दिस इज अ ग्रेट। शार्क टैंक देखा होगा आप लोगों ने, काफी लोगों ने, है ना? तो वो बड़ा अच्छा लगता है ना देखने में तो, बट वो भी एक करियर ऑप्शन है। मैं आईआईटी बॉम्बे गया था कुछ साल पहले, तो एक बंदा आया, कहता सर अगर आपको पूजा करवानी है ना तो हम ऑनलाइन पूजा करवा देते हैं। मैंने कहा मतलब? कहता जी वैष्णो देवी का प्रसाद आपके घर आ जाएगा, आपके नाम की पूजा करवा देंगे। मैंने कहा ये क्या, मतलब मैंने मन में सोचा ये क्या वाहियात आइडिया है। वो अपने कार्ड बांट रहा था, विजिटिंग कार्ड। भाई आपके घर में आपके दादा दादी हैं, हाँ, उनको जाना है वैष्णो देवी, वो जा नहीं सकते हैं। तो एक बंदे ने स्टार्टअप शुरू किया कि जी हम वैष्णो देवी में पूजा कराएंगे, आपको वीडियो कॉल पे पूजा दिखाएंगे, आपका प्रसाद आपके घर पहुंचा। मुझे आइडिया बड़ा वाहियात लगा था, बट आप बिलीव करो 2-3 महीने पहले मैंने अखबार में एक ऐड देखा, इंडियन जो पोस्ट डिपार्टमेंट है ना, उसने भी ये सर्विस शुरू कर दी है कि आपका गंगा जल आपके घर आ जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत बड़ा समुद्र है,
अभी एक स्लाइड में करेंगे इसके बारे में बात। इस तरफ भी सोचना शुरू कर सकते हो जॉब्स के साथ साथ, क्योंकि सच्चाई ये भी है कि देश में ना इतनी सरकारी नौकरी है और ना ही इतनी प्राइवेट नौकरी है कि सबको मिल जाए, ये भी एक सच है। इसीलिए गवर्नमेंट का फोकस इस चीज पे भी है कि बच्चे अपना काम स्टार्ट करने के बारे में सोचिए एटलीस्ट। आपने एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट तो पढ़ा होगा ही, बस एमबीए में मैंडेटरी होता है। आई डो नॉट नो अगर अब आप कौन से ईयर में है, मे बी अभी नहीं पढ़ा है तो आगे आएगा। आपके एंटरप्रेन्योरशिप का सेल भी होगा जरूर से। और जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इंटरेस्टेड है, आप अपने मेंटर से बात कीजिएगा, हम डिटेल से बात करेंगे कि गवर्नमेंट क्या क्या हेल्प करती है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। हम इसके बारे में अलग से चर्चा भी करेंगे। इंग्लिश के बारे में हमने बात कर ली है। सिंपल बात यही है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई इसका इलाज नहीं है। इंग्लिश न्यूज़पेपर एक तरीका हो सकता है, आपस में हम इंग्लिश में बोलेंगे वो एक तरीका हो सकता है। जब भी प्रेजेंटेशन मिले, देखो शुरू में डर लगता है, हेजिटेशन होता है। अमिताभ बच्चन से एक बार पूछा गया कि सर जब आप स्टेज पे आते हैं आपको डर लगता है? कहता कुछ सेकंड के लिए तो थोड़ा हार्ट तेज होता है। ये सबके साथ होता है, पता है। ये शायद आपके टीचर के साथ भी होता हो, आपको पता नहीं चलता। जब मैं आपसे मिलने के लिए आने वाला था, यानी डिजिटली भी, तब भी मेरे दिमाग में 10 से 15 मिनट पहले चल रहा था मैं कैसे पढ़ाऊंगा, कैसी ऑडियंस आएगी। वो सभी के साथ होता है, वो बहुत बहुत नॉर्मल चीज है वो। तो अगर आपने आज कोई प्रेजेंटेशन तैयार किया है, तो अगर आपको घबराहट हो रही है तो दैट्स ओके, पर बोलने की कोशिश करो इंग्लिश में, चाहे आप लिख के लेके आओ, राइट अप, प्रैक्टिस करो। दैट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जैसे आप अपना रिज्यूम कैसे, मेल कैसे लिखोगे आप में से एक कोई भी एक स्टूडेंट जो था, जो मुझे साथ व्हाट्सएप पे बात कर रहा था मुझसे, ही वाज वेरी गुड स्टूडेंट, बट स्टिल आई एम नॉट टेलिंग द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट, मुझे नाम पता भी नहीं है, बट लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम था। मेल आप कैसा लिखते हैं किसी को, दैट टेल्स समवन अबाउट यू। आपने ग्रीटिंग से स्टार्ट किया या नहीं किया, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है। जब भी हम प्रोफेशनल मेल लिखते हैं ना, मैं भी लिखता हूँ, तो मैं 2 बार चेक करता हूँ कि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक एटलीस्ट ना हो, बिकॉज दैट्स अ बैड इंप्रेशन अबाउट यू। अपने कुलीग से आप कैसे बात करेंगे, अभी तो आप सब स्टूडेंट हैं, आप कैसे और भाई तू क्या कर रहा है, हाँ, और बहन तू क्या कर रही है, समथिंग लाइक दैट, इनफॉर्मली यू टॉक ना। बट व्हेन यू आर इन द कॉर्पोरेट्स, यू नीड टू टॉक वेरी रिस्पेक्टफुली टू ईच एवरीवन। इंटरव्यू कैसे देना है, इंटरव्यू देना भी एक स्किल है। बीटेक के टाइम पे जब मैंने पहला इंटरव्यू दिया था ना मेरी लाइफ का, तो मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया था, मुझे पसीना आ गया था। मैं क्या बोलूं, जबकि मैंने वो रटा हुआ था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर हॉबीज, ये सब मैंने याद किया हुआ था, पर मैं दे नहीं पाया था, पहला इंटरव्यू। तो वो भी हमें आना चाहिए। आपके मॉक इंटरव्यूज होते होंगे, पार्टिसिपेट करो, जरूर करो। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, हमारे टाइम में ये चीजें नहीं होती थी। यू ऑल आर द लकी वन कि आपका इंडस्ट्री इंटीग्रेशन सेल है, आपका प्लेसमेंट सेल है, आपके टीचर्स इतने कैपेबल है। वो सब आपको जब जब भी कोई इवेंट्स कराते हैं ना, पार्टिसिपेट करो। आपको पता नहीं लग रहा है, पर आपकी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं। रिपोर्ट्स कैसे बनाते हो आप लोग, आप में से कुछ लोगों की मैंने रिपोर्ट्स देखी हुई है, आपके सीनियर्स से शायद। हम कुछ भी लिख देते हैं रिपोर्ट में ना, कॉपी पेस्ट किया, उसको जस्टिफाई भी नहीं किया ठीक से, बोल्ड नहीं किया, कुछ भी 10 पेज नेट से उठाए दे दिए। आपको लगता है कि आपने टीचर को बेवकूफ बनाया, आपने टीचर को बेवकूफ नहीं बनाया, आपने अपने आप को बेवकूफ बनाया। क्यों? क्योंकि वो ये रिपोर्ट बनाना, पीपीटी बनाना, ये काम तो आपको कॉर्पोरेट लाइफ में करना ही करना पड़ेगा। इफ यू विल नॉट लर्न हियर, इफ दिस स्किल इज नॉट है, आपने 80 नंबर ले लिए जिस 100 में से, आप खुश हैं, एमबीए कर लिया, बट क्योंकि आपने उस 80 नंबर लेने के दौरान एक रिपोर्ट मेकिंग का एक पार्ट था, असाइनमेंट्स का एक पार्ट था, आपने उसको सीरियसली नहीं किया, तो आपको कॉर्पोरेट लाइफ में प्रॉब्लम आएगी आएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, जॉब लगना आसान है, जॉब में सस्टेन करना ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये सारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं जो अलग अलग प्रोग्राम्स आपके यहाँ होते ही रहते हैं, आपके टीचर्स करवाते भी होंगे। लास्ट जो मैंने बात बोली थी, एंटरप्रेन्योरशिप। टाइम कितना है मेरे पास? हमने कुछ प्लान किया हुआ है कि हमें कितने बजे खत्म करना है इसको? एनी एनी कोई मुझे बताएगा कि Sir, as per your wish. वी कैन कंटिन्यू फॉर अनदर 15-20 मिनट में? Yes, sir, yes. थैंक यू मैम, थैंक यू। वैसे तो बच्चों आई अंडरस्टैंड कि ऑनलाइन में आपका 1 घंटे के बाद गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, बट थोड़ा सा और सुन लेते हैं, पता नहीं नेक्स्ट टाइम आपसे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा बातचीत करने का, तो थोड़ा सा और सुनते हैं, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, स्टार्टिंग वाली। फिर अंजलि मैम है, बाकी लोग भी अगर रिक्वायर्ड होगा तो हम फ्यूचर में कभी डिटेल से करेंगे। देखिए, एंटरप्रेन्योर होता कौन है? कोई बोलता है बिजनेसमैन होता है, हाँ। बिजनेसमैन तो मतलब मेरे मान लीजिए पापा की मिठाई की दुकान है, अब मैं उस पर बैठने लग गया तो क्या मैं एंटरप्रेन्योर बन गया? नो। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी एक समस्या है, उसका सॉल्यूशन दे दे विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, एंड उसमें टेक्नोलॉजी को भी जोड़ दे। इनोवेशन, क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी, समाज की प्रॉब्लम। अब आप कोई भी स्टार्टअप उठा लो, जैसे कुछ साल पहले
जब मैं चंडीगढ़ था, मैं ट्रेनिंग्स करवाने जाता था, मेरी समस्या क्या आती थी, मुझे होटल चाहिए जी। अब होटल कैसे लूंगा जी? चंडीगढ़ से मैं दिल्ली आया, अब दिल्ली में वो मेरा कोट देख के डिसाइड करता है कि इससे कितने रुपए मांगने हैं। हाँ, कोट अच्छा पहना हुआ तो इससे 3,000 ले लो, अब देने पड़ेंगे रात को 12 बजे भाई। ये एक प्रॉब्लम थी। दूसरी तरफ अच्छे होटल्स खाली पड़े थे। ओयो का जो फाउंडर है रितेश अग्रवाल, उसको ये समस्या समझ में आई। उसने क्या किया, एक ऐप बनाया, इसमें एक तरफ होटल्स डाल दिए, एक तरफ कस्टमर्स है, उनकी मैपिंग हो गई, बन गया स्टार्ट। मुझे रात को ट्रेन पकड़ना है, और मान लीजिए मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहता हूँ, मैं और मेरी वाइफ है और एक छोटा बच्चा। अब मैं रात को कैसे जाऊं बस स्टैंड? मैं पड़ोस में ऑटो वाले को बोलूंगी भैया रात को 11 बजे आ जाना, मेरी ट्रेन है, वो कहेगा जी आ जाऊंगा। अब मान लीजिए रात को उसने ड्रिंक किया, या जैसे भी वो सो गया, उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया, अब मैं कैसे पहुंचू? समस्या थी। दूसरी तरफ बहुत सारे कैब वाले ऐसे थे जिनको काम ही नहीं मिलता था। वो डेली, हर शहर में होता है ना एक टैक्सी स्टैंड होता है, जैसे अपने हिसार में ये पुराना गवर्नमेंट कॉलेज जो मैदान है रेड स्क्वायर मार्केट, वहां पे एक टैक्सी स्टैंड है। ऐसी कैंप चौक पे एक टैक्सी स्टैंड है। तो वहां पे वो लोग खड़े रहते हैं, उनको रोज काम ही नहीं मिलता था। इस प्रॉब्लम को ओला और उबर ने समझा। अब रात को 2 बजे भी मेरे घर के बाहर कैब आ जाती है, मैं आराम से पहुंच जाता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप यानी जो भी प्रॉब्लम है ना, उसका आप सोल्यूशन ढूंढ पाए ना, तो प्रॉब्लम दूर। आपको चाय पीनी है, हिसार तो अभी इतना नहीं हुआ है। एक बार मैं मेरी वाइफ चंडीगढ़ में थे, सर्दियों का टाइम था, मैंने कहा चाय बना लेते हैं। बोले किचन में कौन जाएगा चाय बनाने? मैंने कहा बात तो ठीक है। तो हमने क्या किया, चायों से एक ऐप है, उस पर चाय ऑर्डर किया, चाय वाला चाय ले आया हमने। ठीक है, वो 250 रुपये वेस्ट हो गए, बट वेस्ट नहीं बोलूंगा, मतलब 250 रुपये लग गए, बट मेरे को रिक्वायरमेंट एक प्रॉब्लम थी ना। अब सिंगल्स हैं जिनकी फैमिली नहीं है, आपके जैसे लोग जब गुड़गांव में नौकरी के लिए जाएंगे, नाइट शिफ्ट में ड्यूटी लगी हुई है आपकी, अब आपको कुछ खाना है तो जोमेटो इज देयर फॉर यू। और एग्जांपल देखिए एक नेक्स्ट लेवल पे। अब आप कह रहे हो सर आधा घंटा कौन वेट करेगा? आपको पता है कुछ एप्स आई है जेप्टो, वो 10 मिनट में दे देता है आपको। मान लीजिए आपका सर्फ खत्म हो गया, घर पे काम कर रहे थे आप, या आपको ब्रेड मंगवाना है जी सुबह सुबह, 10 मिनट में आपके घर पे ब्रेड आ जाएगा। एक प्रॉब्लम क्या आई कि मुझे प्रिंट आउट लेना है जी, मेरे घर प्रिंटर नहीं है। जेप्टो कह रहा है अपनी फाइल अपलोड करो, 10 मिनट में आपके घर प्रिंट आउट आ जाएगा। ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एक एक मैं आपको फनी बताता हूँ, फनी तो नहीं है, सच है वो भी। आपको पता है, थोड़ा नेगेटिव है, डोंट डोंट जब किसी की डेथ होती है, अब डेथ तो सच्चाई है ना, इस दुनिया का जीवन और मरना तो सच्चाई है। जब डेथ होती है तो आजकल की जनरेशन को ये भी नहीं पता है कि डेथ के टाइम पे एज पर रिचुअल्स क्या है। जैसे हिंदू धर्म में क्या रिचुअल्स है, अब नई जनरेशन को तो नहीं पता। स्टार्टअप है जी उसके लिए, कि आपका सारा काम हम करा देंगे, पंडित भी आ जाएगा, जो भी लाना है आप पैसे दे दो 20,000 रुपए। फॉरेन में तो बहुत अच्छे से चल रहा है ये, इंडिया में भी स्टार्ट होगी। कफन एंड ऑल द थिंग्स विल बी कमिंग टू यू ऑनलाइन। एंड और ये कोई बुरा स्टार्टअप नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो जाए लोग मरना तो नहीं छोड़ेंगे ना, लोग मरते तो रहेंगे। तो अगर ये भी है किसी का स्टार्टअप है तो इट्स अ गुड स्टार्ट। आई मीन एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप का मतलब सिर्फ ये है, आप अभी सोच सकते हो राइट नाउ, उस दिमाग में है ना, तो उसके ऊपर आप अपने मेंटर से अपने टीचर से बात कर सकते हो। और बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, मतलब इसके लिए जरूरी भी नहीं है कि आप 2-3 साल फील्ड में जाओ, ये जरूरी नहीं है। ये भी एक करियर ऑप्शन है, आप इस तरफ सोच सकते हैं। जो मैंने आपको बोला, क्रिएटिविटी इनोवेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देंगे तो आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। मेरे लिए तो आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। अब आप कोई भी एग्जांपल देख लो जो शार्क टैंक इंडिया पे आया था, या जो आपके आसपास नया हो रहा है। बाई जूस देखो कब आया, 2 साल पहले आया था सिर्फ। आज इंडियन क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर है वो। उसने क्या किया, ऑनलाइन टीचिंग को, कोरोना आया था, ऑनलाइन टीचिंग को बड़े लेवल पे ले गया, और आज यू कैन सी व्हाट दे आर डूइंग। इंडिया में मुझे याद है जब मैं एमबीए करता था, या उससे भी पहले की बात है, मैं एक रिसर्च पेपर, हम लोग उस टाइम सोशल मीडिया ऑनलाइन कुछ कुछ आना ही शुरू हुआ था, आया भी नहीं था। तो एक रिसर्च पेपर हमने लिखा, उसकी फाइंडिंग में पता क्या था, कि इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग कभी कामयाबी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भारतीय महिलाएं जब तक टच नहीं करती है ना, जब तक उनको पसंद नहीं आता, खासकर कपड़े। और मेल्स में बात करें तो जूते। भाई आप जूता लेने के लिए जाते हो, आप पहन के देखते हो ना। जितने भी फीमेल्स हैं स्पेसिफिकली, वैसे मेल्स भी, कपड़ा आप अपने शरीर पे पहन के देखना चाहते हो पहले। बट आपको पता है आज की डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा शॉपिंग ऑनलाइन कपड़ों और जूतों की होती है। सो फॉर एग्जांपल मीशो एंड काफी कुछ आ गया। चलिए कट शॉर्ट करते हैं। पर्पस यहाँ पे आपको थोड़ा सा अवेयर करने के लिए था कि एंटरप्रेन्योरशिप भी एक तरीका है, एक जॉब अपॉर्चुनिटी है। और लेट मी टेल यू, नौकरी में आप कितने ही बड़े बन जाओ, आप किसी ना किसी के अंडर काम करोगे। एंटरप्रेन्योरशिप में आप अपने बॉस हो।
इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ काम नहीं करना पड़ता, यहाँ सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है। देखिए मैंने गवर्नमेंट जॉब किया है, वर्क इन BSNL, I was in BITS Pilani, I worked with private companies. I started my academy of skills. Right now I'm again in a government job, okay. और इस सब में मैं हजारों लोगों से मिला हूँ, अलग अलग तरह से, बच्चों से, टीचर से। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है सबसे ज्यादा काम एंटरप्रेन्योरशिप में करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आराम करके आप तो वो शार्क टैंक बन जाओगे, नहीं, इसमें सबसे ज्यादा मेहनत है। जब मैंने मेरी एकेडमी स्टार्ट की थी ना, फिजिकल एकेडमी, तो मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में, मैं झाड़ू भी खुद ही लगा लेता था कि यार पैसे बच जाएंगे, क्योंकि सस्टेन करना है ना। मेरे पास उतनी फंडिंग नहीं थी कि भैया, मेरे पास कोई फंडिंग के नाम पे पापा को भी ये लगता था कि यार ये फालतू की बातें करते हो, तुम अपना कोई नौकरी ढूंढ लो। पर जब मैं खुद का काम करता था तो पैसे बचाने के लिए मैं कर लेता था अपनी सफाई सेंटर। अच्छा, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या चाहिए, एक बार चलिए, बहुत देर से मैं ही बोल रहा हूँ, कैन आई गेट द क्विक आंसर? आपको एंटरप्रेन्योर बनना है जी, उसके लिए क्या चाहिए आपको, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कैन यू टेल मी? Idea, Knowledge sir. and skills. Knowledge, skill, idea, okay. What other than that? बस नॉलेज, आइडिया हो गया। मेरे पास आइडिया है कि भैया मैं लोगों के कपड़े धोऊंगा, लोगों के कपड़े धो के उनके घर पहुंचा दूंगा, क्योंकि अभी ये इनफॉर्मली चल रहा है ना काम, ये मेरा एक आइडिया है, तो मैं कर सकता हूँ काम इस पे, स्टार्टअप में बन गया एंटरप्रेन्योर। या और कुछ भी चाहिए? खुशी ने बोला कि नॉलेज भी चाहिए, मतलब उस काम को कैसे करोगे आप, स्किल्स भी चाहिए, हाँ, और कुछ भी चाहिए? Funds. हाँ, पैसा चाहिए ना, पैसा कहाँ से लाएंगे? आपके पास तो पैसा नहीं है एज ए स्टूडेंट। और कुछ? हीरो, द हीरो इज सेइंग समथिंग। काफी लोगों को लगता है कि पैसा चाहिए, बट लेट मी टेल यू, लोग आपको पैसा देने को तैयार है, पैसा मिल जाता है, फंडिंग मिल जाएगी आपको। स्टार्टअप फंडिंग, सीड फंडिंग तो गवर्नमेंट दे रही है। एक वेबसाइट है स्टार्टअप इंडिया ही है, स्टार्टअप इंडिया गूगल पे लिखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। सीड फंडिंग 5 लाख रुपए तक की वो आपको दे देंगे। ऐसे नहीं कि हर किसी को दे देंगे, ऑफकोर्स आपके आइडिया में दम भी होना चाहिए, हाँ, सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, आपका बिजनेस आइडिया होना चाहिए आपके साथ, अच्छा स्किल सेट होना चाहिए, जैसा अभी खुशी ने बोला, बिजनेस प्लान वर्केबल होना चाहिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, मेंटरिंग होनी चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए। एज ए स्टूडेंट अभी आपको सब कुछ नहीं आता है, बट इन योर यूनिवर्सिटी देयर इज अ सेल दैट कैन हेल्प यू। पर प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हम जाते ही नहीं है। मैं आपकी हेल्प क्यों करूं जब तक आप मेरे पास हेल्प मांगने नहीं आए? सुनिए, ये बात सही है ना, एक कहावत है, देयर इज नो फ्री लंच, फ्री में कुछ नहीं है जी। तो आप जब तक मेरे को बार बार फोन नहीं करेंगे, मेरे को मतलब आपके मेंटर्स को, आपके टीचर्स को, उनके पास बार बार नहीं जाएंगे, तब तक उसको क्या पड़ी है कि वो आपके ऊपर इतना ध्यान दे, वो क्यों दे? और तो मेंटरिंग एंड सपोर्ट की रिक्वायरमेंट भी रहती है। कुछ और एक चीज है जो मैंने इस पीपीटी में नहीं लिखी है, वो माइंडसेट। आज की डेट में आपको लगता है कि सर 20,000 की नौकरी लग जाए वो ठीक है, रादर देन वी जनरली एज इंडियन वी डू नॉट वांट टू टेक द रिस्क कि यार मैं अपना काम स्टार्ट कर लूं। तो माइंडसेट होना बड़ा जरूरी है। जब आपको ये लगेगा ना कि यार मुझे तो यही करना है, तभी बात बनेगी। अब फटाफट से लास्ट के 10 मिनट में ये देख लेते हैं कि क्या क्या स्किल्स हैं जो हमें इंप्रूव करनी है अगर हमें नौकरी चाहिए किसी भी फील्ड में। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, बैंकिंग में, टेलीकॉम में, जिनके साथ मैंने क्लोजली काम किया है, ऑटोमोबाइल में, सब जगह रिक्वायरमेंट है। और आप तो एमबीए हो, एमबीए क्या करता है जी? मैनेज तो सबको ही करवाना भैया अपना काम, मैनेजमेंट तो सभी को चाहिए ना, चाहे वो मार्केटिंग की कंपनी है, चाहे वो शेयर मार्केट है, कुछ भी है। तो आप लोगों की रिक्वायरमेंट एज ए एमबीए हर जगह रहेगी, पर वो सिर्फ एंट्री के लिए है, मतलब आप उस लाइन में लग सकते हो सिर्फ। अब उस लाइन में आप कितना जा पाओगे, उसके लिए क्या क्या चाहिए? पहला, कम्युनिकेशन स्किल्स, आप अपनी बात को अच्छे से रख पाओ। अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश में रखनी पड़ेगी, बट हिंदी भी ओके, बट अगेन रिकमेंडेशन है कि इंग्लिश में अपने आप को अच्छा करो अगर आपको जॉब चाहिए। मैं टाइम अलाउ करेगा तो मैं मेरी लाइफ का जो पहला इंटरव्यू मैंने क्रैक किया था ना, उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हेल्प करती है आपके इंटरव्यूज में। आपको नहीं भी आता है ना टेक्निकल चीजें, फिर भी आप कैसे बचते हो, हम करेंगे इसके बारे में। भी आप कोर्स कर रहे हो, अभी आप एमबीए कर रहे हो ना, उसको डेडिकेशन से करो, उसकी हर छोटी असाइनमेंट, उसका हर छोटा प्रोजेक्ट, उसकी हर छोटी एक्टिविटी दिल से ईमानदारी से करो। आई एम रिपीटिंग 4th टाइम, जो भी अभी आप एमबीए में कर रहे हो ना, ये सारी चीजें आपकी स्किल्स को इंप्रूव कर रही है, आपको खुद को पता भी नहीं चल रहा है, पर ये कर रही है। तो एमबीए कर रहे हो,
इसको सिर्फ नाम के लिए कंप्लीट मत करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 सप्लियां पेंडिंग पड़ी है, 40%, 60% से कर रहे हो। नो, मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है। लेट मी टेल यू, मेरी जो फर्स्ट जॉब लगी थी GGU से सॉफ्टवेयर कंपनी में, उसकी कंडीशन पता है क्या थी? 70% होना चाहिए 10th 12th और जितना आपने बीटेक की। तो काफी भीड़ तो हटी गई थी, हम कुछ ही लोग हुए थे एलिजिबल। तो मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है। स्किल्स को अपग्रेड करो, इसके बारे में हमने बात कर ली। स्किल्स अपग्रेड में चाहे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, चाहे आपने कुछ भी एक्स्ट्रा किया है, ये तो करना ही पड़ेगा। आज आप सिर्फ MBA करके मेरे पास आओ, सर MBA कर लिया नौकरी दे दो, नहीं है भैया, कोई नहीं देगा आपको। और एक चीज और जिस पे मैं फोकस करना चाहूंगा, एनरोल फॉर द एडिशनल सर्टिफिकेट्स। MBA के साथ साथ ना कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स अर्न करो आप अपनी डिग्री में। जैसे आपने स्वयं पोर्टल का नाम सुना है? स्वयं, SWAYAM, नोट कर लो। उस पे जाओगे जब आप, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। स्वयं, स्वयं का मतलब खुद से, मैनेजमेंट के कोर्सेज उसमें रन करता है। IIM बेंगलोर, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। दो फायदे होंगे, नंबर एक आपकी लर्निंग इंप्रूव हो जाएगी, नंबर दूसरा फायदा आपको क्या होगा कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अब अगेन, कल को खुशी और सचिन, दो बच्चे मेरे पास आए, दोनों ने MBA किया है, दोनों के सेम मार्क्स है, स्किल सेट भी सेम है, पर मान लीजिए खुशी के पास एक दो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है, चांसेस हाई है कि आपको एक जो जितने भी फाइनेंस के बच्चे मेरे पास सब बैठे हैं, NISM के कुछ कोर्सेज है। NISM गूगल पे सर्च करना, म्यूचुअल फंड्स के, फाइनेंशियल सेक्टर्स के, वो भी आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो। एक पोर्टल है PG पाठशाला, EPG पाठशाला। ये सारे लिंक ना, मैं जिस बच्चे ने मेरे साथ कम्युनिकेट किया था व्हाट्सएप पे, मैं उनको दे दूंगा, आप उनसे ले भी लेना। वहां पर जाके आपको अलग अलग कोर्सेज की PDF फाइल्स और वीडियोस मिल जाएंगी, जिसकी हेल्प से भी आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। कोशिश करो कि ये MBA डिग्री खत्म होने तक आपके पास एक स्वयं का सर्टिफिकेट हो एटलीस्ट, और एक दो और सर्टिफिकेशन एज पर मार्केटिंग के तो आप मार्केटिंग की कर सकते हो, फाइनेंस के तो आप फाइनेंस के कर लो, आपके जो टीचर्स हैं वो आपको गाइड करते हैं। तो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन ऑलवेज हेल्प्स, उसके लिए आप चाहें। स्वयं वाला बहुत सही है। वहां पर जरूरी नहीं है कि आपको MBA, मान लीजिए आपको फोटोग्राफी का इंटरेस्ट है, आप फोटोग्राफी का कोर्स कर सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हो, आप फाइनेंस के कोर्सेज कर सकते हो। और एक अच्छी चीज क्या है, वो सारे कोर्सेज देश में जितने भी एक्सपर्ट टीचर्स हैं, IITs, IIMs के, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के, अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटीज के, उन्हीं के उस पे सेशंस हैं। स्वयं पे एक कोर्स आपके मैम है, मैं नाम भूल रहा हूँ, she was heading HRDC, मैं उनका नाम मिस कर रहा हूँ, सीनियर प्रोफेसर इज देयर फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी एक कोर्स उस पे उनका है। वंदना पूनिया मैम की बात कर रहे हैं? जी अंजलि मैम, वंदना मैम का भी एक कोर्स स्वयं पोर्टल पे है। तो आप एक बार स्वयं पोर्टल को एक्सप्लोर कीजिएगा, तो और कोशिश करें कि एक दो एक्स्ट्रा कोर्स आप कर लें ड्यूरिंग योर डिग्री। तो आप कल को जब आप इंटरव्यू देने के लिए आए मेरे पास, मान लीजिए मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, आपकी लैंग्वेज में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, मान लो आप मुझे जवाब नहीं भी दे पा रहे, पर जब मैं देखूंगा कि यार बच्चे ने एक्स्ट्रा भी करने की कोशिश की है, चांसेस आर गुड दैट ही विल ग्रैब अ जॉब। जॉब्स की कमी नहीं है, लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में मैं काम करता हूँ, वी आर क्लोजली वर्किंग इन एसोसिएशन विद द इंडस्ट्रीज। जैसे मारुति के साथ मेरा टाइप है, मतलब मेरी बातचीत रहती है। HDFC के बैंक के साथ हम लोग क्लोजली काम करते हैं। तो अभी 2-3 दिन पहले भी HDFC के वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे हमारे पास, तो वो यही कह रहे थे कि सर बच्चे चाहिए, कितने भी दे दो हमें, पर बच्चे कौन से चाहिए? जिनके अंदर कुछ स्किल सेट हो, जो हमारे क्लाइंट से बात कर पाए, जिनका एटीट्यूडनल प्रॉब्लम ना हो। लेट मी टेल यू, हरियाणा के बच्चों में एटीट्यूड की भी प्रॉब्लम है। ये देखो, आप मानोगे, इस चीज को मानना पड़ेगा। हमें लगता है यार मैं ये काम क्यों करूं, या मतलब एक है, देखिए 3 चीजें होती है, नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड, ये तीनों चाहिए आपको। KS से बोलते हैं हम लोग। नॉलेज मतलब ज्ञान जो आपने पढ़ा क्लासरूम्स में। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट आर 4 P's ऑफ मार्केटिंग, व्हाट आर 7 P's ऑफ मार्केटिंग, आपकी नॉलेज वो भी होनी चाहिए। स्किल्स, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ योर लर्निंग्स, वो होना चाहिए आपके पास। और तीसरा, जिसपे सबसे कम ध्यान दिया जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड ठीक होना बहुत जरूरी है। और ये जो KFP है ना लाइफ में, क्या फर्क पड़ता है, की फर्क पैदा, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपका एटीट्यूड ठीक है ना लाइफ में, तो आपको सपोर्ट करने के लिए दुनिया बैठी है। और अगर आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, तो नो वन विल हेल्प यू एज अ स्टूडेंट, नो वन विल हेल्प यू। मान लीजिए आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है आपके टीचर्स के साथ, तो आपके टीचर को कोई मतलब नहीं है आपसे। ही विल ट्राई, ही और शी विल ट्राई, बट एक टाइम के बाद वो छोड़ देगा।
सेम व्हेन यू गेट अ जॉब, अगर आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, पीपल विल नॉट हेल्प यू. So nothing is more expensive than a missed opportunity. So start, and there are endless opportunities which are waiting for you. Opportunities की कोई कमी नहीं है. आप मुझे मेरे पास आए, individually आप मेरे पास आए, because I have studied from GJU, I have worked there, so I have a close, एक bonding है मेरी GJU के साथ, of course. तो जैसे प्रताप सर ने बोला सेशन करना, I immediately said yes. तो आप as a individual भी अगर मेरे पास आते हैं, तो whatever good I can do for you, I mean, कोई प्लेसमेंट्स में भी, प्लेसमेंट टीम से मैं बात कर लूंगा, या गुड़गांव में, राइट नाउ माय यूनिवर्सिटी इज इन गुड़गांव, तो आई कैन हेल्प यू फॉर प्लेसमेंट्स आल्सो. बट प्रोवाइडेड क्या है कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, तो आपको देख के लगे सामने वाले को कि यार इस बच्चे को तो मैं छोड़ ही नहीं सकता. तो अपने स्किल्स पे काम करो, और बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है. एक बार अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव कर लो, एक दो सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज ले लो, एक दो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट ऐड कर लो, अपना एटीट्यूड थोड़ा सा ठीक कर लो, जॉब ही जॉब. ठीक है जी. तो मेरा नंबर भी आप नोट कर सकते हैं. इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माय साइड एनी टाइम, यू कैन व्हाट्सएप मी एनी टाइम, एंड I will get back to you. And 2 to 3 more minutes I will take, then I will wind up. I will just share a small तो नहीं है, कहानी तो बहुत बड़ी है, मैं छोटा करके आपको सुनाता हूँ कि लाइफ में how your attitude matters, how you can choose your own path. तो मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा. आई होप ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग टू मी, और थोड़ा सा एक्टिवली भी सुनना पड़ेगा. 2004 में मैंने बीटेक में एडमिशन लिया था जीजेयू. उस टाइम पे एक ही ऑप्शन होता था करियर का कि आप बीटेक कर लीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा. 8 में बीटेक हुआ, 2007 आते आते समझ में आ गया कि भैया नौकरी तो है ही नहीं, और जीजेयू में उस समय कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता था, ना के बराबर होता था. आज तो बहुत सारी कंपनियां आपके लिए आती हैं. HSB इज द पायनियर इन द हरियाणा, कि जहाँ पे इतनी कंपनियां आती है, और ये आती हैं, ये मुझे पता है क्योंकि आई क्लोजली सी योर पोर्टल्स. तो जब मेरे लिए कंपनी आई, मतलब हम बाहर जाते थे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए, कभी दिल्ली कभी चंडीगढ़. तो आप हमने ना एक, जब हम शुरू में जाते थे तो रिटन पेपर ही क्लियर नहीं होता था. तो घर वाले फोन करते थे, बेटा कहाँ पहुंच गए, खाना खा लिया क्या. थोड़े दिनों में उन्होंने करना छोड़ दिया कि इसका कहीं होता तो है नहीं, जाके वापस आ जाएगा. उन्होंने फोन करना छोड़ दिया. फिर एक हमने बैग बनवाया था जिसको हम बोलते थे प्लेसमेंट बैग. उसमें एक यूनिफॉर्म थी जो हमें पहननी थी इंटरव्यू के लिए, पर इंटरव्यू का तो नंबर ही नहीं आ रहा था, रिटर्न में फेल हो जाते थे. तो बैग बंद का बन जाता था, बंद का बंद वापस आता था. स्ट्रगल था, 3 4 5 6 कंपनियां निकली. फाइनली एक कंपनी आई चितकारा में, चंडीगढ़ में, जिसका नाम था आई गेट ग्लोबल सॉल्यूशन. उसने बोला 70% है तो आ जाओ. हम लाइन में लग गए, रिटर्न क्लियर हो गया, इंटरव्यू स्टार्ट हुआ. ग्रुप डिस्कशन कैंसिल हो गया. व्हाई? रात को 10 बज गए थे, तो डिस्कशन हो गया कैंसिल. हम खुश हो गए कि बोलना नहीं पड़ेगा, इंग्लिश से तो डर लगता था. तो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, एक सरदार जी बैठे थे सामने, उन्होंने शुरू किया पढ़ाना, उन्होंने इंटरव्यू लेना शुरू किया. सो ही आस्क्ड मी सम टेक्निकल थिंग्स. कुछ मुझे आती थी, कुछ मुझे नहीं आती. ठीक ठाक सा हुआ, और मुझे बोला गया थैंक यू, आप बाहर वेट कर लो. ध्यान से सुनिएगा. तो जब मैं बाहर वेट कर रहा था, तो प्रोसेस क्या था, जिसका ये राउंड क्लियर हो जाता था, सर बेल बजाते थे, पीएन अंदर आता, रिज्यूम पीएन को मिलता, और बोल दिया जाता था इसको बोल के HR इंटरव्यू के लिए भेज दो. ठीक है. मैं बाहर खड़ा करा था, मैंने सारे भगवान याद किए. भगवान को हम कभी याद करते हैं जब हम मुसीबत में होते हैं. तो मेरे बाद एक लड़की अंदर गई, वो बाहर आई, उसको बोला गया आप HR के लिए चले जाओ. मैंने कहा मेरा क्या हुआ. कहता जी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ. अब मेरे को उस टाइम पे लगता था नौकरी मिल जाएगी ना, इसके वाला मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए इसको. आपको भी यही लगता होगा ना आज की डेट में कि सिर्फ एक बार एक जॉब मिल जाए, लाइफ सेट. तो मैं खड़ा था, और नीचे चला गया. मेरे दोस्त खाना खा रहे थे, कहते खाना खा लो. मैंने कहा नहीं यार मूड ठीक नहीं है. ऑफकोर्स आपको बुरा लगता है ना, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ. मैं फिर ऊपर गया, मैंने पीएन को बोला यार मुझे एक बार अंदर जाने दो. बोला वाई. मैंने कहा सर से बात करने. कहता अलाउड नहीं है. मैंने कहा एक बार जाने दो. तो ही अलाउड मी. मैं अंदर गया, इंटरव्यू चल रहा था, मैं साइड में खड़ा था. जैसे इंटरव्यू खत्म हुआ, मैंने बोला सर माय नेम इज योगेश एंड आई वांट टू टॉक टू यू. तो उन्होंने बोला किस बारे में. मैंने कहा सर आई कुड नॉट क्लियर द इंटरव्यू, प्लीज टेल मी माय मिस्टेक्स. उसने बोला सॉरी वी डू नॉट हैव टाइम फॉर सच काइंड ऑफ डिस्कशंस. मैंने बोला प्लीज टेल मी, आई वांट टू इंप्रूव माय सेल्फ. उसने कहा आपका नाम क्या. मैंने कहा योगेश. कहता 2 मिनट वेट करो. उस 2 मिनट में मैंने फिर सारे भगवान को याद किया. हाँ कि भगवान प्लीज 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 प्लीज. 2 मिनट के बाद मुझे बोला गया आप इंटरव्यू दे आओ HR. यहाँ पर क्या हुआ था ये मैं लास्ट में बताऊंगा. अब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, रात को 11 बजे. एक मैडम मेरे सामने बैठी है, कुछ बेसिक क्वेश्चन उसने पूछे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, सैलरी कितनी, और वो सब. लास्ट में बोलते हैं योगेश एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, मैं आपको सिलेक्ट कर लूंगा. मैंने कहा बताओ. टेल मी द 3 uses of pen
डू नॉट इंक्लूड राइटिंग। लिखने के अलावा पेन के 3 यूज क्या हो सकते हैं ये बता दो। अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पढ़ चुके हैं तो वो जवाब ना दें, ठीक है। बाकी लोग मुझे बताएंगे कि पेन के लिखने के अलावा 3 यूज क्या हो सकते हैं। सर सोचो। बेच सकते हैं। बेच सकते हैं, सचिन ने बोला बेच सकते हैं। ओके, एक हो गया। अब आप दोबारा नहीं बोलेंगे, बाकी लोग ट्राई करें। आप कितने लोग हैं अभी? 40 लोग हैं। 40 आंसर नहीं तो 10 आंसर तो मुझे चाहिए। हाँ जी, सोचे पेन की यूज। अभी स्किल्स एक एक सोचने में भी काम आता है। सोचने के काम आता है, ऋतिक बोला। देखो अभी अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ कि स्किल्स, इमीडिएट क्वेश्चन आ गया, इमीडिएट जवाब देना है। अब पढ़ तो आपने मार्केटिंग रखी है सबने। और बताओ, चलिए 2 आपने बता दिया। ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनके लिए सर मैंडेटरी है जेब में रखना, क्योंकि किसी टाइम उनको जरूरत पड़ सकती है सर। कोई भी चीज लर्न करते हैं, कुछ भी चीज सीखते हैं तो सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 100% ठीक नहीं है, बट हाँ ये भी ठीक है। 3 लोगों ने जवाब दे दिया, यानी 3 लोग मुझे सुन रहे थे। ये 3 लोग, बाकी लोग भी सोचो ना यार। विकास कह रहे गिफ्ट दे सकते हैं किसी को, वेरी गुड। हाँ, गिफ्ट किस पर्पस? हमने अभी हमारे एक टीचर की जॉब चेंज हुई थी, उसको पेन गिफ्ट किया था, बिल्कुल। देन मोटो GAT saying for safety, pen can be used as a safety, can you elaborate किस तरह से? आइडिया, ओके। चलिए, मुझे कोई भी नहीं आता था। तो मैं वहां बैठा था सामने, मुझे कोई भी जवाब नहीं आता था। मैंने पहला जवाब दिया, वी कैन यूज पेन लाइक अ पॉइंटर, वी कैन पॉइंट समथिंग विद हेल्प ऑफ पेन। मान लीजिए मुझे बोर्ड पे कुछ दिखाना है आपको। उन्होंने कहा वेरी गुड, अगला बताओ। अगला नहीं आता। अब कई बार क्या होता है, यू आर सिटिंग इन अ वेरी सीरियस सिचुएशन, मेरे सामने मेरी नौकरी थी और मैं क्या सोच रहा हूँ, यार अब घर कैसे जाएंगे यार, इस हार के लिए तो बस ही नहीं मिलेगी। कई बार ऐसा होता है ना, आप क्लास में बहुत सीरियस बैठे होते हैं बट आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। फिर मैं सोच रहा हूँ यार आज फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैं सोच रहा हूँ यार मैं यहाँ क्यों आऊँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं तो MBA कर लूंगा। ये बीटेक के बाद की कहानी बता रहा हूँ आपको। तो फिर हमें सिखाया गया था, व्हेन यू डू नॉट गेट द आंसर लुक अराउंड योरसेल्फ, अपने चारों तरफ देखो। अब चारों तरफ से मैडम दिख रही है, टेबल दिख रही है, हाँ बेंच दिख रहा है, जवाब तो कहीं नहीं दिख रहा है। फिर क्या हुआ कि कुछ पेपर उड़ रहे थे ऐसी हवा से, पंखे से। मैंने बोल दिया कि वी कैन यूज इट लाइक अ पेपर वेट। उन्होंने कहा वेरी गुड, लास्ट बता दो। अब लास्ट नहीं आ रहा था जी। अब मुझे लग रहा है यार जब मुझे लास्ट नहीं आ रहा था तो मैंने इसको ये 2 क्यों बताए। अब अगर मेरे दिमाग में चल रहा है वो सरदार जी ने पहले रिजेक्ट क्यों कर दिया था। फिर मैंने अपने आप को कॉन्सेंट्रेट किया और मैडम का पेन जब देखा तो बड़ा सुंदर सा था। तो मुझे लगा मैडम को बोल देते हैं कि मैडम ए गुड पेन एड्स अप इन द पर्सनैलिटी। मैंने कहा या तो मैडम मान के सिलेक्ट कर लेंगी या तो फिर रिजेक्शन तो है ही है। तो मैडम ने बोला वेरी गुड। मैडम ने पूछा आपको कुछ पूछना है, मैंने कहा हाँ जी। बोले क्या? मैंने कहा सिलेक्शन हो गया? कहता जी ये तो 2 दिन के बाद पता लगा। सो आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट कंपनी। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। पर यहाँ पर ना बाहुबली 1 खत्म हुई है सिर्फ, इसके बाद मैं आप तक कैसे आया हूँ ये हम किसी और दिन बात करेंगे, है ना। ये तो मेरी फर्स्ट जॉब थी। इसके बाद द जर्नी दैट आई डिड, हाउ आई रीच्ड टू BSNL एंड देन टू GJU एंड देन टू स्किल यूनिवर्सिटी, दैट वी विल डिस्कस समडे एल्स। लास्ट में 1 मिनट में ये बताओ, वो सरदार जी ने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था ना, तो हाउ आई गॉट सिलेक्टेड अगेन? उसको मेरे ऊपर दया आई क्या हुआ होगा? इसको खत्म करके स्टॉक को खत्म करते। क्योंकि आपने कहा था कि मुझे अपनी मिस्टेक जाननी है और मैं उनको इम्प्रूव करना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब ये कहानी खुशी आपके जैसे कई हजार बच्चों को सुनाई है मैंने, कई हजार। तो अगर अब आप लोग इंटरव्यू दो और अगर आपका ना हो सिलेक्शन तो आप जाके ये बोल दो कि सर मुझे इंप्रूव करना है, तो फिर हो जाएगा सबका। अब ये बात तो हजारों लोग सुन चुके हैं, तो हजारों बच्चे अब फिर से चले जाएंगे तो क्या सबका सिलेक्शन होगा? इसका जवाब दो पहले। नो सर। सबका नहीं होगा, है ना। नो, एक्चुअली क्या हुआ था, एक्चुअल में उनको मेरे ऊपर दया नहीं आई थी। ओके, भारत इज सेइंग ही सो योर डिजायर टू इंप्रूव एंड हैव अ वैलिड सपोर्ट फॉर योरसेल्फ। अब कहानी का ट्विस्ट ये है कि सरदार जी ने मुझे पहले सिलेक्ट किया हुआ था, ठीक है, पर मेरे इंटरव्यू के बाद उन्होंने 1 मिनट का ब्रेक किया। मैं तो बाहर खड़ा था, पर सर का रूम और मैडम का रूम अंदर से भी कनेक्टेड था। तो वो उनके पास चले गए चाय पीने के लिए और मेरा रिज्यूम उन्होंने उनको दे दिया कि जी इस बच्चे को बुला लेना, ठीक है। अब वहां ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट था, सैकड़ों बच्चे आए हुए थे, मेरा रिज्यूम वहां दब गया। बाहर वाला चैनल फॉलो नहीं हुआ, बाहर से जो होना था मुझे पता नहीं चला। पर क्योंकि मैं दोबारा गया, क्योंकि मैंने वो कॉन्फिडेंस दिखाया, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन ठीक ठाक सी थी, इस वजह से उन सर को ये याद आ गया कि यार इस बच्चे को तो मैंने सिलेक्ट किया था। तो उसने जब मुझे बोला ना 2 मिनट बाहर जाओ, उस टाइम ने उसने कंफर्म किया कि यार क्या इशू हो गया था, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आज मैं आपके साथ बैठा हूं।
वो दूसरी बात है कि वो नौकरी मैंने 1 महीने के बाद छोड़ दी थी, वो कहानी हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। बट क्योंकि आई शोड द कॉन्फिडेंस, बिकॉज माई कम्युनिकेशन वॉज ओके, एंड ऑन दैट डे, कई बार होता है ना आपके अंदर से आता है इंस्टिंक्ट निकल के कि यार इंटरव्यू तो ठीक ठाक ही हुआ था, व्हाई ही डिड नॉट सेलेक्ट मी। तो मैं क्योंकि वापस गया, तो कई बार क्या होता है, टेक्निकल नॉलेज अब आपने बहुत कुछ सीख लिया एमबीए में, हाँ, जैसे मैंने बीटेक में बहुत कुछ सीखा था, पर मेरी नौकरी किस क्वेश्चन पे आ गई थी, पेन के 3 यूज पे। प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। या वो जब सरदार जी ने क्वेश्चन पूछे थे, काफी तो मैंने बताए थे, पर अगर मैं दोबारा ना जाता ना उनके पास, तो आज शायद मैं आप लोगों से ही बात ना कर रहा हूँ। सो लाइफ इज लाइक दिस ओनली, यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्टिव, और अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा हमें, जैसे कोरोना ने हमें सिखाया। किसने सोचा था कि कोई एक ऐसी बीमारी भी आ सकती है। सो with this, I will end up my talk today, and my request to everyone is that try to start working on your skills, try to upgrade your EEE, specifically English और employability skills, resume बनाना, आपस में इंग्लिश में बातचीत करो, अपने टीचर्स की सपोर्ट लो, they are very supporting, all the staff of HSP is very supportive, है ना। So with this I will wind up my talk here. Thank you everyone for your patience listening, 1.5 घंटा हो गया लगभग, आप लोग मुझे सुन रहे थे, थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड आई होप कि कुछ तो हमने आज नया सीखा है। थैंक यू सो मच। Okay, thank you so much, sir, for sharing precious words. And I know everyone present here love listening to you. And thank you so much for providing an atmosphere of motivation as you talked about the grounded reality which a corporate sector or which a person needs. So I think they all will do some work, some skill on to enhance themselves, and they definitely gain something today. And thank you so much, sir. Thank you Thank you, so ma'am. much. Thank you, Request, students. yeah, one request, can we all on our camera just for a memory? I will click a pictures of everyone. So अभी 1 मिनट के लिए तो आप कर सकते हैं जिन्होंने नहीं किया। So all the thank yous which are coming in the chat box, ये थैंक यू तभी कंप्लीट होगा जब आपने जो आज सीखा उसको यूज भी करेंगे, है ना। इसको रखें लाइफ में, और यू कैन बी माई टच, आई एम शेयरिंग माई नंबर एज वेल, यू कैन बी माई टच फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प। आई मीन कोई भी एकेडमिक हेल्प आपको मुझसे कभी भी चाहिए इन योर लाइफ, तो आई विल बी देयर फॉर यू। अंजलि मैम, थैंक यू सो मच दैट you organize this, and I hope कि कुछ learning enhancement हुआ है। In future also we can plan the this kind of programs, ma'am, maybe in physical mode and in the online mode as per the availability of the resources, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. ओ थैंक यू का मतलब यही था ना, नाउ वी शुड लीव। हाँ चलिए बेटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बी इन टच, बाय बाय। Thank you, sir.